ठीक है. This is a person who will basically give artificial birth to the company, जो आपकी ये form of business है, right? And this person will be responsible for all the crucial decisions for the startup. एक चीज को स्टार्ट करने के लिए सारे क्रूशियल डिसीजंस इसके हाथ में रहेंगे. एंड जो प्रमोटर होता है ना गाइस कंपनी का, ही हैज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द कंपनी. अब ये फिड्यूशरी क्या होता है? फिड्यूशरी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट. ठीक है. इट इज अ वेरी peculiar kind of a situation. Why? Because see, promoter has all the necessary and crucial information of the company, right? So अपने फायदे के लिए this person can do whatever he wants. ये इंफॉर्मेशन कहीं भी डील कर सकता है. इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, जब अंदर की आप सारी खबरें वबरें सब बाहर दे देते हो. तो it's of course illegal, and that is why it is said that a promoter has to stand in a fiduciary relationship to the company. Means he has to act in good faith. मतलब सच्चे से काम करना है, अच्छे से काम करना है और किसी को धोखा वोखा नहीं देना है. बिकॉज अगर ये चीज एक्सपोज हो जाती है तो इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस, पनिशेबल होता है ये. ठीक है. And this person will basically get the first directors of the company. He will create the memorandum of association. He will create the articles of association of the company. So company formation, I told you, it's a very complex procedure because a lot of documentation is involved. And when you are doing it, it is very imperative कि ये सब कुछ आप legally and within bounds करें. So this person will be standing in a fiduciary relationship. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं, आइडिया, यही चीजें मैंने अभी जो डिस्कस की हैं कि आइडिया लेके आएगा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि किस कैन दिस बिजनेस फ्लरिश, कैन दिस बिजनेस टेक ऑफ, इज इट profitable, viable and feasible to get into this business. Every crucial decision that is to be taken will be taken by the promoter. Duties and liabilities again यही रहती है इसकी कि you can't make secret profits. Like I told you, they stand in a fiduciary relationship and they just cannot be some people who are trading that crucial information out of the company. So they can't of course make profits out of it. इनको अच्छे से काम करना है. Preliminary contracts. Ma'am, company have no, ma'am, Yes, company yes. have no any terms and condition for like whom we sold out our data. Company has what? Terms and conditions for? For anybody send our data, like promoter sold out our data entirely, so we So have that no is a any crime, sir. terms That and is a rules. crime. So That is a how crime. can he sold If he out? gets caught, he can be tried in court. That is Okay. what I'm trying to tell you. Okay, a promoter stands in a fiduciary relationship with the company. He is someone who is giving birth to the company. He cannot cheat the company, and if he does, he will be tried in court. So He will be made to pay heavy compensation for that. okay, so he is, so it's illegal for Of promoter. course, 100% it's illegal. Of course it is. Okay, ma'am. ठीक है. And he has to create the documents. See, these documents जो ये बनते हैं ना, when you create a company, the memorandum of association, the articles of association, they're very crucial documents. ये इसमें भी आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हो. अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो of course again you will be held accountable. जो भी आपने गड़बड़ी करी है, अगर आपने कुछ ऐसे Okay, ma'am. फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए जो गलत है, या ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए जो कि लाइक किसी को फ्रॉड करने के चक्कर में है, then again he will be held liable for that. Any misstatement, non-disclosure, he is liable to pay compensation for that. तो अगर किसी को पता है कि भैया अगर मैं पकड़ा गया, कुछ गड़बड़ अगर पकड़ी गई कल को, क्योंकि these documents will be available to people to read, and कल को Okay, लोग ma'am. यही पढ़ के कंपनी के पास आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. These memorandum of associations are available to be read. आप पढ़ सकते हैं किसी भी कंपनी का उठा के Okay, memorandum. ma'am. And हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है. यू कैन रीड इट, बट द थिंग इज द डॉक्यूमेंट इज सो बिग. कई की कंपनी का तो एक पेज का होता है, कई की कंपनी का बहुत बड़ा होता है. एंड व्हेन यू रीड बहुत है. दैट, सॉरी, मेरी कंपनी का भी बहुत पेज हो. एक पेज का है, नहीं मैम, बहुत पेजों बहुत का पेज. है. सो यू वुड नो कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये. एंड एनी मिसस्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजर will be like very much you can pay like a very hefty fine if it's found, which is in non-compliance with what your company policies actually are. People can hold you accountable for that.
तो इसलिए अनट्रू स्टेटमेंट ये सब नहीं करनी होती. अच्छा, कंपनी हैज दिस वेरी बिग बेनिफिट ऑफ रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. तो जब प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, अगेन इट्स एन ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि आपको बताएगा कि कौन कौन से शेयर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस क्लास के है, कितने रुपए के है, क्या उसका सारा डिविडेंड का सीन रहेगा, वो सब लिखा होता है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर. तो वो Yes, ma'am. प्रोस्पेक्टस के अंदर भी आप कुछ गड़बड़ी स्टेटमेंट नहीं डाल सकते. यू कांट पुट अनट्रू स्टेटमेंट्स, मिस लाइक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंसील्ड फैक्ट्स. तो ये सब That नहीं. means मैं अपनी तरफ से मॉडिफाइड नहीं कर सकता उसको, वो जो है वही है ना मैम? सी देखो, मॉडिफाई आप तब तक कर सकते हो जब तक वो प्रोस्पेक्टस छप के ये बट नहीं चुका है. जब वो बट चुका है, दैट मींस कि यू हैव ऑफ कोर्स डन ऑल द प्रोसीजर्स दैट इज रिक्वायर्ड. आपने ड्यू डिलिजेंस दिखा दिया है, आपने केयर दिखा दिया है. नाउ इफ यू से कि मेरी गलती होगी तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. या आपको फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वी हैव डन दिस सो वी वुड वांट टू फॉरफिट आवर प्रोस्पेक्टस एंड प्लीज डिसरिगार्ड इट. If anyone is you need to at least let people know, take measures, otherwise you will definitely be held accountable कि आपने ये जान के करा है. So at the time मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हो जाए. 100% करना पड़ेगा आपको. अगर आप नहीं करोगे तो everyone will hold you accountable. Okay, ma'am. ठीक है. एंड दिस प्रोमोटर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ही क्या होता है कभी कभी कि कंपनी, सपोज करो मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, पर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है कि कैसे मैं स्टार्ट करूं, क्या करूं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू मार्केट रिसर्च, बट मेरे को नहीं समझ कुछ आ रहा है. तो आई कैन इवन हायर दीज प्रोमोटर्स. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं. दीज पीपल आर बेसिकली द पीपल हु विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट अ बिजनेस एंड देन दे विल चार्ज अ hefty remuneration from you and exit. कई लोग सिर्फ प्रमोशन का काम करके चाबी पकड़ा देते हैं, लो जी सर आपका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप आगे देख लो. And some Yes, ma'am. promoters are people who actually subscribe to the memorandums, who actually become the first directors of the memorandum, the first shareholders of the company. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोमोटर्स होते हैं. एंड जनरली क्या होता है कि इनको कंपनी के प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे दिया जाता है, या इनको कमीशन दे दी जाती है, या शेयर्स दे दिए जाते हैं. तो दे आर वेरी वेल कॉम्पनसेटेड इन दिस. एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, ये लोग कमाते हैं अच्छा खासा. Like a just dial, Edico. सॉरी, Like a just dial, ma'am. जस्ट डायल. Just dial is a promoter. जस्ट डायल इज अ प्रमोटर. Yes, ma'am. Like so he is shareholder or promoter. That is IPO. IPO पे हम आएंगे जब फाइनेंस डिस्कस करेंगे. I will tell you what IPO is and all सब. Okay. Promoter, just understand, promoter is someone जो business start कर देता है. ठीक है, बट अ Okay. प्रमोटर इज समवन जो कि हमेशा उसको स्टिक नहीं करना है, वो छोड़ के भी जा सकता है. इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ प्रमोटर्स होते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी चला के दे देंगे और बोलेंगे कि आप खुद काम करो, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड. दे नो कि कहाँ से पैसा लेके आना है, कितने कौन कौन से लोग, कहाँ से मेरे को मटेरियल अच्छा मिल जाएगा, कहाँ से मेरे को डॉक्यूमेंट्स आराम से छप जाएंगे मेरे. दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. मतलब वो स्टार्टअप करेंगे हमारे लिए और वो हमें देके वापस चले जाएंगे. This is one thing. The other thing is that कि they can stay. अपने लिए बिजनेस भी तो खोल सकते हैं ना. हाँ, जरूरी नहीं है कि देके चले जाए, देके भी जाते हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि देके भी जाते हैं. एंड दे ऑफ कोर्स जो अपने लिए खुद का काम कर रहा है वो तो प्रमोटर खुद ही करा जाएगा ना. हाँ, यस मैम. इट कैन बी बोथ थिंग्स. Okay. Okay guys, so this was your first block. Now I'm not taking the second block right now, which is finance, because देखो हमने अभी auxiliaries to trade डिस्कस करा है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में आपका ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 4 है. इट विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट योर auxiliaries to trade. तो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग B2 अभी. B2 हम बाद में करेंगे. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद B3 और नेक्स्ट क्लास में B4 खत्म करके देन B2 पे आ जाएंगे. ऐसे करेंगे बिकॉज फाइनेंस एकदम से थोड़ा अलग से टॉपिक हो जाता है. अभी हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके ओके मैम. तो पहला सबसे ब्लॉक आपका है आई थिंक एडवर्टाइजिंग का. या सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर सबने एडवर्टाइजिंग वर्ड तो सुना होगा. यस क्या मैम. होता है एडवर्टाइजिंग, क्या चल रहा होता है इसके अंदर. सो गाइस इसके 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं जो कि ध्यान में रखने वाले होते हैं, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडवर्टाइजमेंट.
राइट. सो आई वाज टेलिंग यू कि जितने भी हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, दे आर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब स्मूथ facilitation, continuity of that cycle where you make the product, you sell the product, you make the product, you sell the product. कोई हिकअप बीच में नहीं आना चाहिए. There should not be any problem in that process, right? So that is why the auxiliaries to trades come into play. So advertising is one auxiliary to trade जो कि हमें utility of knowledge देती है. Okay, it gives us utility of knowledge. How? It makes people know कि okay, this producer is in the market and he is selling this product at this price and these are the benefits of these products. ठीक है, तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है. And before that, let me tell you a little bit of a थोड़ा सा marketing concept है ये, जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, which is the STP concept. Which is the STP concept, which is basically known as segmentation for S. T is for target and P is for positioning. Of course ये आपको पढ़ना नहीं है, but मैं बता रही हूँ कि एडवर्टाइजिंग में exactly होता क्या है. Okay? Yes. Segmentation, target and positioning. आप एक मार्केट को टुकड़े कर देते हो. ठीक है, एक मार्केट के टुकड़े कर देते हो. आप कहते हो कि I am going to focus on say markets for children. Okay, मैं बच्चों के कपड़े बेचूंगी. Then your target, you choose a target. You say कि okay नहीं, मुझे teenagers के कपड़े बनाने हैं. Okay, and then you create products कि ऐसे प्रोडक्ट मेरा हो, ऐसे कपड़े मेरे हो कि जैसे ही बच्चा सोचे कि कपड़े कौन से लेने हैं, उसके दिमाग में सबसे पहले वो आए. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं आपको बोलती हूँ क्या चल रहा है, तो क्या आता है दिमाग में? नेक्स्ट जनरेशन चल रहा है मैम. क्या चल रहा है? नेक्स्ट जनरेशन है मैम. नेक्स्ट जनरेशन. आप तो अलग ही हो गई. वे दो तीन बच्चों से मैंने फॉग सुना. फॉग है ना. तो जब भी ये लाइन आती है क्या चल रहा है, सबके दिमाग में एकदम से फॉग पॉप अप होता है. So this is basically the positioning. The marketer, the advertiser wants कि whenever there is a problem in your life and you need some product to solve that problem, my product should pop up in your head सबसे पहले. और आप किसी प्रोडक्ट के बारे में ना सोचो. एडवर्टाइजर का ये गोल है. जैसे अगर मैं बोलती हूँ होटल, क्या था? ओयो, ट्रिवागो, राइट. So आप देख रहे हो कि जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती हैं, these advertisements are made with the motive कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, रह जाए, भले ही आप प्रोडक्ट यूज करो ना करो. It does not matter. कल को आपने किसी को अगर कोई सलाह वाला देनी होगी ना, आप बोलोगे अरे यार गोवा बीबी पे चले जाओ, अरे आप इस पे चले जाओ, आप अरे ट्रिवागो से बुक करा लो, आप booking.com से बुक करा लो. आप ऐसे उनको बोलोगे भले ही आप खुद यूज नहीं कर रहे हो. एडवर्टाइजर का एक ये रोल होता है, एक ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए, पोजीशन हो जाए. इसलिए हम इसको पोजीशनिंग बोलते हैं, राइट. बट देन एक चीज और भी बहुत ध्यान रखने वाली है, जो कि अगेन हमारे हाथ में नहीं होती है, हैबिट्स. इफ यू आर अ हैबिचुअल बायर, आपने आंख बंद करके अगर आपने फॉग ही खरीदना है, आपके ऊपर एक्स की एडवर्टाइजमेंट, आपके ऊपर किसी और परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट, डीओ की एडवर्टाइजमेंट काम नहीं करेगी. व्हाई? बिकॉज यू आर हैबिचुअल. एंड हैबिट्स को ब्रेक करना मार्केटर के लिए इतना आसान नहीं है. ही हैज टू इंड्यूस यू. he would have to point like find you. He would have to come and lure you. He will say कि सर आप चिंता ना करो, आप ये मेरा प्रोडक्ट फ्री में ट्राई करके देखो. तभी सैंपल्स दिए जाते हैं, तभी टेस्टिंग्स होती हैं कि फ्री में दे गिव सैंपल्स एंड स्टफ लाइक दैट. इवेंट्स किए जाते हैं कि आप आके उनका प्रोडक्ट यूज करो. ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट. थोड़ा हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है यहाँ पर. They want us to just think about their products. That is basically what the advertiser does. आप भी खुद सोचो ना कि एक एडवर्टाइजमेंट 1000 बार दिखाने की क्या जरूरत है. आप एक आप चैनल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो कोई, ठीक है, उसके अंदर बार बार ब्रेक्स आ रहे हैं, वो सेम एड हर 10 मिनट 15 मिनट बाद रिपीट हो रही है. why does बार दिखा के मैम, sorry, बार दिखा के हमारे माइंड में उस चीज को भर देने के लिए. Exactly. That is why the frequency of advertisement
is very important. They don't want you to forget their product. They don't want you to do that. Because अगर आप उनका प्रोडक्ट भूल गए तो उनका सारा पैसा वेस्ट. So that is why वो बार बार आपको ऐड दिखा के जगाते हैं, उठ जाओ सर, मेरा प्रोडक्ट देखो, मेरा प्रोडक्ट देखो, मेरा प्रोडक्ट देखो. आप ये देखो कि on a daily basis how much data you consume. आपके कितनी नजर जाती है आसपास, आप कितनी चीजें पढ़ के अपने दिमाग में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उस चीज को बिठा लेते हो. सो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैं अगर एक फाइल असाइनमेंट्स चेक कर रही हूँ, ठीक है, एंड द होल क्लास हैज टू सबमिट द असाइनमेंट, राइट. सो पहला बच्चा आया, उसने मेरे डेस्क पे एक फाइल रखी, फिर दूसरा बच्चा आया, उसने दूसरी फाइल रखी. ऐसे करते 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 पूरी पाइल बन गई फाइल्स की, राइट. ना कई बच्चे क्लास में होते हैं, वो कहते हैं यार मेरा पहले चेक हो जाए अच्छा रहेगा, तो आके फटाफट क्या करेंगे, अपनी फाइल उठा के ऊपर रख देंगे या अपनी कॉपी उठा के ऊपर रख देंगे, मेरा पहले चेक हो जाए, राइट. सो एडवर्टाइजर भी कुछ ऐसे ही करता है कि अरे मेरी ऐड भूल ना जाए, मेरी ऐड अब इसके दिमाग के पीछे चली गई है, इतनी सारी एड्स इसने देख ली है. लोगों के इमोशंस को हैक करती है. सॉरी, कंपनीज लोगों को इमोशंस को हैक करना जानती है, इसीलिए एग्जैक्टली. स्पेशली अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो आई थिंक इंडियन मार्केट को केटर करना, बहलाना फुसलाना बहुत आसान है, बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस. Get some free. we are very much driven by emotions. इसलिए आप देख रहे होगे कि एड्स में यूजुअली फैमिली का दिखा देंगे, मम्मी पापा का दिखा देंगे, भाई बहन का दिखा देंगे. कैडबरी की जो एड्स आती हैं उसके अंदर हमेशा ये लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने वो निकालते हैं एंड पापा मम्मी को दे रहा है. अभी एक कैडबरी की एड है जिसमें वो लड़का, सॉरी, पतंजलि का शुद्ध देसी घी, ताकत बढ़ाओ सेहतमंद बनो. हाँ, तो ये जो लोगोस भी होते हैं ना, जो ये लोग जो डायलॉग्स बोलते हैं, ये लोग जो जिंगल बोलते हैं, गाना गाते हैं, ये ऐसी होती है कि आपके दिमाग में अटक जाती है. इसलिए इस तरीके से इसको इतना अट्रैक्टिव एंड बनाया जाता है. अच्छा, कभी कभी कॉन्शियसली एडवर्टाइजर इतनी खराब ऐड बनाता है, इतनी खराब ऐड बनाता है कि आप बोलो अरे क्या बनाया भाई, क्यों बनाया भाई, आपको गुस्सा आता है ऐड देख के. बट देन अगेन इट डज नॉट मैटर, बिकॉज एटलीस्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज कि यार इतनी इन्होंने फुद्दू सी ऐड बना दी, क्या है ये, उड़ रहा है कोई, वो रेड बुल की ऐड आती है, यू गेट विंग्स. क्या एक एनर्जी ड्रिंक पी के आपके विंग्स थोड़ी लग जाते हैं, बट वो ऐसा डर के एकदम थम्स अप डर के आगे जीते. मैम वो स्टिंग वाला ऐड, मैम वो सारे 10 फ्लोर चढ़ जाता है स्टिंग पी के. मैम एग्जैक्टली, मतलब दीस आर रिडिकुलस एड्स. असली में ऐसा नहीं होता है. वाला. अच्छा, एक ऐड आई थी जिसमें बेबी अभी भी बॉर्न हुआ है और पैदा होते ही उसने फोन पकड़ के गेम्स खेलनी शुरू कर दी है. So all these ads are जानबूझ के made such like that कि आपको देख के लिटरली गुस्सा है, आप भी अपने घर में बोलोगे क्या खुद चीज बनाई है इन्होंने. तो एनी हाउ साम नाम दंड भेद करके एडवर्टाइजर का काम यही होता है कि आपके दिमाग में एक छाप छोड़नी है कुछ भी करके, ठीक है. एंड उसको ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत पैसे मिलते हैं. आप ये खुद सोचो ना यार कि मतलब दीज रियलिटी शोज जो होते हैं, ये कपिल का शो हो गया या कोई डांस शो हो गया, एंड व्हेन द मूवी इज अबाउट रिलीज, तो ये सारे एक्टर्स क्यों आ जाते हैं? बिकॉज एक तो उनको दिखाना होता है कि भैया हम हैं, हम लोग यू नो वी एग्जिस्ट एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस मूवी एंड आप प्लीज देख के आना. सो ये भी तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. अगर आप मूवी का बजट देखो ना, उसमें से एटलीस्ट आई थिंक 40-50% बजट एडवर्टाइजमेंट का ही होता है. जो ये प्रमोशंस नहीं करते जा जाके सिटी टू सिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं होटल्स में जा जाके, इसका काम सारा यही होता है कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि यार मूवी आने वाली है. क्योंकि पैसे लाइक एटलीस्ट इंडिया में जो मूवी का इतना क्रेज है, दे अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत पैसे कमाते हैं लोग इससे. तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट का बजट भी बहुत होता है, पैसे खूब खर्चे जाते हैं. क्योंकि अगेन अगर आपको सपोज करो कि एक्टर पसंद है, राइट, इफ अगर सपोज करो आपको से अक्षय कुमार पसंद है, राइट, और उसकी कोई मूवी आ रही है, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की. बट देन अगेन दे डू इट बिकॉज दे डोंट नो कि कितने लोग मेरे को जानते हैं, कितना इफेक्ट आएगा. सी अक्षय कुमार जैसा इतना फेमस एक्टर, he still has to advertise, he still has to go to these shows and say, of course इतनी मैक्सिमम ज्यादा प्रमोशन ये लोग नहीं करते, बिकॉज एक बार आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, फिर क्या जरूरत है, राइट. बट देन अगेन टाइम टू टाइम टू कम इन पब्लिक आई, टू क्रिएट द बज इन द मार्केट, दे हैव टू डू इट. अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अभी पीछे क्या हुआ था,
इसने अपने नाम के ऊपर लिखा हुआ था ना प्रियंका चोपड़ा जोनस। Yes. तो पीछे देयर वाज द न्यूज कि शी हैज टेकन ऑफ द जोनस वर्ड फ्रॉम द नेम। नहीं, ठीक है, जिस जोनस नाम हटा दिया। निक तो जॉन्स। एवरीवन वाज लाइक, जितने भी मीडिया हाउस थे, जितने भी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लोग थे, सब वेंट क्रेजी। अरे अरे इनका भी डिवोर्स हो रहा है, अरे अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लोग डिवोर्स कर रहे हैं, चलो जी एक और शादी टूटी, नो वन इज इन हेवन, पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 ब्ला। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रियंका चोपड़ा पूरे वर्ल्ड में टॉक्ड अबाउट हो गई। शी बिकम अटेंशन मिल गई लाइक उनको। काइंड ऑफ जैसे अ मैम बज़ अभी टॉपिक। सलमान खान की एड, जैसे अभी सलमान खान का चल रहा है, अभी विकी और कैटरीना की शादी में सलमान खान का एड निकाल दिया। अच्छा राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हियर प्रियंका चोपड़ा ने किसी को पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, कुछ बोला नहीं कि करो, बट उसने क्या किया, छोटी सी एक चीज की मीडिया ने खुद ही नोटिस कर लिया, उसको पतंगड़ बना दिया। बट देन अगेन शी वाज ट्राइंग टू डू पब्लिसिटी फॉर हरसेल्फ। हाउ? She just removed the name Jonas and people noted it and they started talking about it. अभी आई थिंक पीछे मैट्रिक्स का नया ट्रेलर आया था। आई थिंक शी इज वर्किंग इन दैट मूवी। इट वाज जस्ट फॉर दैट सेक कि मेरा नाम उछल के आए, क्योंकि मूवी आने वाली है मेरी, राइट? ऑफ कोर्स वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बट व्हाट द थिंग So हैपेंड ma'am, हियर इज some पब्लिसिटी। kinds of ma'am, Sorry? some kinds of rumors are advertisement. The rumors are basically not advertisement, I would say. Rumor क्या है? Rumor एक है, अरे यार उसने ये कर दिया, अरे यार उसने ये कर दिया, right? So the thing over here is that it is not advertisement because first of all ये लोग पे नहीं कर रहे हैं किसी को, they are doing publicity. Now let me tell you advertisement and publicity का basic difference, right? So talking about advertisement, it is a paid form. मतलब पैसे दे के Okay advertisement ma'am. करते हैं, पहली thing, ठीक है? Publicity is something that is free. पब्लिसिटी में आप पैसे नहीं देते हो। एडवर्टाइजमेंट इज पेड, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजमेंट इज मेड फॉर एवरीवन। आपके लिए मेरे लिए अलग एडवर्टाइजमेंट नहीं बन रही है। अगर कोई टूथपेस्ट आया है तो वो एक टूथपेस्ट की ऐड दिखा देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा इस घर में दिख जाए, उस घर में दिख जाए, नहीं, वो सबको दिखेगी। तो इट इज अ नॉन पर्सनल एंड Ma'am, but you are a good entrepreneur. सॉरी You are good entrepreneur for us. यू आर गुड एंटरप्रेन्योर बोल रहा है मैम। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, हाँ हु इज एंटरप्रेन्योर? मैम आपको बोल रही है। मैं आप ही बोल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। है, मैं एंटरप्रेन्योर बोल रहा लो। अच्छा मैंने क्या स्टार्ट कर दिया भाई जब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ? मैम क्रेडिट क्या है? सॉरी? क्रेडिट एक कुणाल शाह का एक कंपनी है ना, क्रेडिट नीरज चोपड़ा का एड दिखाता है। क्रेडिट? हाँ क्रेड वो क्या, वो क्रेड है। क्रेड वो क्रेडिट पॉइंट्स है कुछ। आई मीन आई थिंक इट्स अबाउट क्रेडिट पे पैसे वैसे उठाओगे तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। दैट इज समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन क्रेडिट। उससे मैम क्रेडिट कार्ड का वो करते हैं, जो अमाउंट बाकी होता है तो वो ऑफ देता है। ओके ठीक है। मैं आई एम नॉट कंसर्न्ड विद बेसिकली दिस काइंड ऑफ क्रेडिट थिंग्स। मुझे पसंद नहीं है। आई एम अ डेबिट कार्ड पर्सन। सो बट देन यू कैन यूज द क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास, इफ यू आर लाइक वेरी श्योर कि आप आराम से पैसे भर दोगे। हाउ? बिकॉज 45-50 डेज आपको वो पैसा फ्री में यूज करने को मिल जाता है। So like that, yeah. Coming back to this, advertisement क्या रहेगी guys? It is a paid form. पहली बात तो आप पैसा पे कर रहे हो, नॉन पर्सनल है, सबके लिए बना है, आपके लिए अलग नहीं बन रहा है। आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, किसी चीज को भी एडवर्टाइज कर सकते हो। जैसे इंडियन गवर्नमेंट करती है बेटी पढ़ाओ, इट्स एन आइडिया। वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस नहीं है, इट्स एन आइडिया। पोलियो ड्रॉप्स, कोविड के आप इंजेक्शंस लगवाओ जाके, दीज आर ऑल आइडियाज, दीज आर फॉर गवर्नमेंट, फॉर बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। So anything you can advertise. It does not has to be products to be sold, yeah, goods to be sold. It can be ideas like that as well, which is meant for welfare of the people. By an identified sponsor. आप लोग Instagram, Facebook या कोई भी सोशल मीडिया पे जाते हो, जब एड आती है तो उस पे नीचे से छोटा सा गोला बन के आता है, लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। नोट किया कभी? अगली बार नोट करना। वो स्पॉन्सर्ड इसलिए लिखा होता है, इट सिंपली मीन्स कि ये किसी ने एड बनवाई है, पैसे दिए हैं इसके,
और इसने दिए है, इट विल ऑलवेज बी, यू वुड नो कि अच्छा इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट है, इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट। ऐसा नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है एंड यू डोंट नो भैया कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, बिकॉज उसका फायदा ही नहीं है। सो एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आप पहचान लोगे कि अच्छा ये इसकी एड है, ये अमूल की एड है, ये डेयरी मिल्क की एड है, यू विल नो। ओके, सो दैट इज योर एडवर्टाइजिंग। पहली चीज है पेड होना चाहिए, नॉन पर्सनल, आइडियाज है, सर्विसेज है, गुड्स है, and identified sponsor, you would know किसने करवाई है। and the next thing that comes is publicity. publicity is basically non paid। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी अभी कि आप कुछ करते नहीं, रूमर्स की जैसे मैं बात करूं तो ये फैलाए ही जानबूझ के जाते हैं ताकि एक ट्रेंड क्रिएट हो सके, एक बज क्रिएट हो सके मार्केट के अंदर, और आपका नाम एकदम से सबके दिमाग में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाए, एकदम से उसी बारे में सबकी बात होनी शुरू हो जाए, उसी के बारे में बात हो। नॉन स्पॉन्सर्ड, दैट सिंपली मींस कि पेड नहीं है, आप पहचान नहीं सकते कि किसने करवाई है पब्लिसिटी। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ नाम हटाया अपना जोनस एंड द मीडिया वेंट क्रेजी एंड दे स्टार्टेड टू राइट आर्टिकल्स, ट्वीट करने शुरू कर दिया, आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, टॉपिक्स खोल के बैठ गए। प्रियंका चोपड़ा ने इनको पैसे नहीं दिए थे कि तुम करो ये चीज। जहां पैसे आ जाते हैं ना वो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और पब्लिसिटी आपकी फ्री की रहती है। एंड देयर इज अ पेक्यूलियर फीचर अबाउट पब्लिसिटी कि इट कैन बी गुड और बैड। ठीक है, कई लोग जानबूझ के अपने स्कैंडल्स करा देते हैं, कई लोग जानबूझ के नेगेटिव पब्लिसिटी करा देते हैं, उससे भी तो नाम होता है। चाहे वो उनका जो भी हो रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो उनके बारे में लोगों को एकदम से याद करा देती है। अच्छा ये भी है, अच्छा ये है अभी भी, अच्छा इसने अब क्या कर दिया। जैसे राखी सावंत की बार बार बीच बीच में इंटरव्यू आते रहते हैं, ये लोग जान के करते हैं सब, ये लोग जान के करते हैं सब, ताकि एटलीस्ट किसी भी तरीके से पीपल आर मेड अवेयर कि ये लोग अभी भी है। ठीक है, सो पब्लिसिटी इज कमर्शियली सिग्निफिकेंट, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर प्रियंका चोपड़ा ने की तो उसकी मूवी आने वाली है, नाउ एवरीवन नोस कि अच्छा मैट्रिक्स आने वाली है। थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया। मैम जैसे अभी दिल्ली में कुछ छोटे जैसे अभी दिल्ली में कुछ कंपनियां हैं छोटी, जो जैसे जो दुकान वाले होते हैं, बड़े शॉप वाले, उनके नंबर्स, उनकी ब्रांडिंग के लिए वो होर्डिंग लगाते हैं, कैनोपीज करते हैं, अवेयरनेस के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं मार्केट में कि आप भाई जाओ इनको अवेयर करके आओ, पैम्पलेट बांट के आओ वगैरह से कुछ। तो ये सारे तो ये एडवर्टाइजमेंट ही है। ये प्रिंट मीडिया है, डिस्कस करेंगे, मीडियम और एडवर्टाइजमेंट में डिस्कस करेंगे। 100% दिस इज एडवर्टाइजिंग। Wherever you are letting people know about your existence of the product or your existence of the company in the market, this is advertising. क्योंकि पैम्फलेट छुपाने में आपके पैसे लग रहे हैं, राइट? अगर फ्री में कोई आपके लिए आर्टिकल्स लिख रहा है जो आपने बोला भी नहीं है उस इंसान को कि आप भैया मेरे लिए आर्टिकल्स लिखो, दैट इज पब्लिसिटी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैम कुछ कंपनीज हैं, मैम कुछ कंपनीज ऐसी है जो एडवर्टाइज बिल्कुल नहीं दिखाती। जैसे कुछ दिन पहले आईपीओ आया नाइका कंपनी का, होंडा नहीं दिखाती ऐड। होंडा की उसके बाद राधा किशन दमनी का जो कंपनी है डी-मार्ट, वो भी एडवर्टाइज नहीं दिखाती, लेकिन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, शेयर प्राइस भी बहुत स्पीड उनकी बढ़ती है, तो वो तो एडवर्टाइज नहीं दिखाती। तो ऐसे उनका कंपनी ग्रो कैसे होता है इतनी स्पीड पे? See, I'll tell you, advertisement सबके लिए जरूरी नहीं होता। Again, it is your need, it is your necessity to let people know कि you are in the market. But when you are already that big and you see कि लोगों का response मेरे products पे अच्छा खासा आ रहा है, तो मैं अपने पैसे advertisement पे क्यों waste करूंगी? लेकिन मैं मारता कैसे? It is not a mandatory thing कि नहीं advertise करना ही करना है। वो लोग पेड पे इन्वेस्ट करते हैं आगे पब्लिसिटी पे, वो भी तो फर्क पड़ता है चीजों को भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्री आपको मिलेगा। बिजनेस मॉडल है वो बहुत, मतलब लेकिन मैम राधा किशन दमनी ने आज तक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया नहीं पता हाउ डू दे ऑपरेट, बट आई कैन टेल यू कि अगर जैसे कंपनी इज ऑलरेडी वेरी फेमस, राइट, एंड पीपल नो कि प्रोडक्ट्स इसके अच्छे ही होते हैं। लाइक अगर मैं होंडा की बात करूं, होंडा की हार्डली एड आपको दिखेगी, होर्डिंग्स भी आपको हार्डली दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, बिकॉज़ होंडा की ऑलरेडी मार्केट है। मैम जो कैसे कस्टमर वो भी पब्लिसिटी कर देते हैं, लोग एडवर्टाइज कर देते एक तरह से कि अच्छा मार्केट। सॉरी
जैसे कि कोई जियो कंपनी है या होंडा कंपनी, इनकी सर्विस अच्छी इन लोगों की, मतलब कि मतलब कि प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं इन लोगों के, तो ये लोग क्या करते हैं इनकी कस्टमर ही प्रमोट कर देते हैं इनको एक तरह से, बट रिकमेंड कर सर देते ये हैं, वो भी सारे प्रमोशन हो गया एक प्रिंट तरह से मीडिया हमारा। में है। वर्ड ऑफ हेलो माउथ, हेलो, वर्ड ऑफ बट माउथ ये मार्केटिंग सारे बोलते हैं प्रिंट इसको। मीडिया में है सॉरी मैम, बट ये लोग सभी प्रिंट मीडिया में तो है ही, जैसे जियो भी प्रिंट मीडिया में आता है इनके, जैसे रिलायंस के आगे जियो। सी द थिंग इज, जब जियो आया था तो आप ये चीज देखो कि जब जियो एकदम से लॉन्च हुआ था तो 3-4 महीने का आई थिंक फ्री था, यस मैम, और यस नेट मैम, राइट? 7 मंथ फ्री अनलिमिटेड कंटिन्यू। काफी काफी टाइम तक फ्री था, आई थिंक काफी और टाइम मैम तक फ्री कुछ ज्यादा यस तेज मैम। स्पीड थी मैम उसकी। था, राइट? सो जियो क्या ने होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, कि आप मार्केट को पेनिट्रेट करो, यू हैव टू गेट इनटू द मार्केट। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेट मी नॉट गेट इनटू दोस, बट यस, जब कोई चीज नहीं आती है ना, न्यू आती है, तो अपना आपको नाम करने के लिए कुछ ना कुछ इंड्यूसमेंट देनी पड़ती है। मैंने आपको बोला ना, हैबिचुअल बायर। जब पहले से कोई है जो वोडाफोन से खुश है, एयरटेल से खुश है, मैं क्यों जियो लूं भाई? बट जब चीज मुझे फ्री मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लूंगी? 100% आई विल टेक। एंड नो डाउट दैट टाइम द क्वालिटी ऑफ द सर्विस वाज वेरी नाइस। मैंने भी अपना जियो में पोर्ट करवाया था क्योंकि मेरे वोडाफोन के सिग्नल्स नहीं आते थे, बट इवेंचुअली बीच में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जियो के लाइक आई कांट सिट इन माय रूम एंड टॉक, मुझे बाहर जाना पड़ता था वोडाफोन के केस में। बट जब मैंने जियो लिया तो मेरे प्रॉपर पूरे सिग्नल आते थे, बट अब बीच में दोबारा गिर गए, एंड 2-3 महीने तक, ये 4-5 महीने तक गिरे रहे, नाउ धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये चीजें होती हैं जब एक बार आप एस्टेब्लिश हो चुके हो, एंड इफ यू डोंट मेंटेन द क्वालिटी तो अगेन स्विच मारेंगे लोग। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, कैसे भी पहुंचाओ। एंड अगर आप पहले से ही मार्केट में इतना अच्छा कर रहे हो, यू डोंट फील द नीड कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट के बिना ही लोग इतने आ जाते हैं आपके पास, आपकी चीजें खरीदने के लिए, आपको प्रॉफिट अच्छे खासे हो रहे हैं, तो आप एडवर्टाइज करोगे, क्या करना, छोड़ो। तो इसलिए होता है, अगेन इट इज अ वेरी पर्सनल मैटर ऑफ द कंपनी, एंड दे हैव टू डिसाइड। हम लोग यहाँ सिर्फ ये नहीं डिसाइड कर रहे कि क्या करेगा कौन नहीं करेगा, हम ये देख रहे हैं कि ये होता क्या है। ओके, सो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस होता है गाइस, यू कैन रीड दैट, पेपर में आ जाता है, विदाउट अ फाइनेंशियल चार्ज, पैसा नहीं देते हो, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, एंड नॉन पर्सनल मीडिया है, दैट मीन्स कि अगेन इट इज फॉर मासेस, बहुत लोगों के लिए होता है, and it can be favorable, unfavorable, जैसे मैं बता रही थी, negative publicity is also good publicity, because in that also your name is in the market, सब आपकी बात कर रहे होते हैं। okay. इसका डिफरेंस आप लोग देख लेना गाइस, सिंपल है बहुत, आ जाता है 2-3 नंबर में आ जाता है ये। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है गाइस, क्यों की जाती है, जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, कुछ जो कस्टमर्स आपके हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करना है, एक चीज के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, उसको करने के लिए, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, मार्केट स्टैंडिंग के लिए, और बेसिकली अपने आप को हमेशा न्यूज में रखने के लिए, तो इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको लिखना अच्छे से। ऑब्जेक्टिव्स तो मतलब अपने पॉइंट्स भी बना के आप लिख सकते हो, कंपटीशन हटाने के लिए, ताकि अगेन आपके बारे में लोग सिर्फ बात करें। अब इसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, भाई वो है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द सोसाइटी, राइट? कि एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी नहीं है, यू हैव टू सी एंड टॉक अबाउट इट। ओके, सो गाइस अब हम सेम पॉइंट्स पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर में और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में। मतलब हम सेम पॉइंट को पहले बोलेंगे नहीं नहीं सही है, और फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? So whenever you get this question, na, role of advertising in the society, just make sure you write both the arguments, okay, and then you give your own conclusion. अपना conclusion देना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा होता है what do you think? Do you think that advertisement is necessary? Do you think it is required? जब ऐसे कुछ लिखा होता है ना, तो कंक्लूजन लिखना होता है, और कंक्लूजन में राइट कि व्हाट डू यू थिंक। आपने अच्छे पॉइंट्स भी बता दिए, उसके पॉजिटिव्स बता दिए, उसके नेगेटिव्स बता दिए, बट उसके बाद गिव अ कंक्लूजन वेयर यू से कि व्हाट एक्चुअली दिस इज दैट बट दिस इज व्हाट आई थिंक दैट शुड हैपन। तो उससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, मतलब विच नेगेटिव्स कह लो, एक तरह से नेगेटिव्स कह लो।
So पहला होता है, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग लीड्स टू हायर प्राइसेस। वो कहते हैं कैसे? सी, एडवर्टाइज जब आप करते हो ना, तो दैट इज अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। ओके, दैट इज अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। वो बजट निकालना पड़ता है, वो बजट सेट असाइड करना पड़ता है, और कंपनी के लिए वो एक खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट इज अ खर्चा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो खर्चा पर यूनिट के हिसाब से वापस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में जोड़ दिया जाता है। एंड जब आप उसको वापस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में जोड़ देते हो, दैट मीन्स कि अब कस्टमर को वो गुड महंगा पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट आपने अगर बिल्कुल नहीं की होती तो सपोज करो आपको 10 रुपए का पड़ रहा होता, अब आपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी तो आपको वो 12-13 रुपए का पड़ रहा है। सो इट इज लीडिंग टू हायर प्राइसेस। सी, ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट जो हम भी पढ़ रहे हैं ना, दीज आर थ्रू काइंड ऑफ मार्केट सर्च, मार्केट रिसर्च के बेस पे है, बट दीज आर नॉट वेरी कंक्लूसिव सर्चेस। मतलब देयर इज नो प्रॉपर लैब टेस्ट या ऐसा कुछ जिससे कि आप टेस्ट कर सको। ये जनरल रिजल्ट्स एक सर्वे वर्वे के निकल के आए हैं, स्टडीज के निकल के आए हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर डिस्कसिंग इट लाइक दैट। ओके, कंक्लूसिव एविडेंस इन बातों के नहीं है। सो दैट इज व्हाई हम सेम पॉइंट को ही अच्छा बता रहे हैं और हम सेम पॉइंट को ही गलत बताएंगे अभी। ठीक है? सो एडवर्टाइजिंग लीड्स टू हायर प्राइसेस, क्योंकि it is an expenditure for the company and this expenditure is nothing but added back to the cost of the goods, and these cost of the goods has to be bore by the customer, तो customer को high price पे करना पड़ता है। दूसरा ये कहते हैं कि advertising leads to monopoly। monopoly मतलब होता है कि एक ही सेलर है मार्केट में और कोई चीज नहीं बेच रहा है। आपको रोते पड़ते कुछ भी करते उसी के पास जाना है। जैसे मैं अगर रेलवेज की बात करूं, जो रेलवे है, सॉरी क्या है ना, तो जो ये रेलवेज है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखती है रेलवेज को। अब आपको अगर रेलगाड़ी में जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से मोनोपोली है और कोई नहीं है जिसके पास आप जा सकते हो। तो मोनोपोली कहता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट ब्रांड इमेज बना देती है, हमारे दिमागों पे छा जाती है और हमें बोलती है ये प्रोडक्ट लो ये अच्छा है, ये प्रोडक्ट लो ये अच्छा है, तो हम आदी हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के। और जब हम हैबिट बना लेते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने की बार बार, तो एक तरह से वो कंपनी हमारे लिए मोनोपोली बन जाती है। और मोनोपोली क्या करती है, मोनोपोली कुछ भी चाहेगी, वो अपना प्रोडक्ट पैसे चार्ज करेगी। मोनोपोली का मतलब होता है कि सेलर एक है, एक ही सेलर है और बायर बहुत सारे हैं। ठीक है? तो वो कहता है कि नहीं एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो मोनोपोली क्रिएट कर देती है, बिकॉज वो एकदम से ब्रांड लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, and these people basically don't let new competition come into the market। नए लोगों को भी एंट्री नहीं करने देते, बिकॉज उनका मार्केट पहले से इतना बड़ा हुआ है कि अगर छोटी कंपनी ट्राई करेगी मार्केट में एंटर करने की तो वो नहीं टिक पाएगी। ओके, तो उसके बाद है इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, राइट, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि इट विल वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो चाहेगी कि वो और प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बनाए। अब जब वो और प्रोडक्ट बनाएगी, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट्स इतने हो रहे हैं, तो वो ज्यादा रिसोर्सेज खरीद सकती है। तो इससे क्या होगा कि बेचारा जो नया एंट्रेंट होगा मार्केट में या कोई जो कुछ करना चाह रहा होगा, उसके लिए रिसोर्सेज कम बचेंगी। 10 सप्लायर है और 10 के 10 सारे सप्लाई कर रहे हैं ए कंपनी को, तो बी कंपनी जाके अगर बोलेगी सर मेरे को सप्लाई किया हुआ है, सर माल नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम है। सो इसलिए इनएफिशिएंट है। देयर इज नो इक्वालिटी इन रिसोर्स एलोकेशन। ओके, एंड देन इट सेज कि इट हैज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। मतलब आप बच्चों को डरा के, जेंडर यूज करके, सिगरेट्स की अगर आप एड दिखा रहे हो, लिकर की एड दिखा रहे हो, तो दीज एड्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स, दीज आर सोशली अनडिजायरेबल। तो ये एड ऐसी बनानी अच्छी नहीं रहती है। आप अपने काम के लिए दूसरों का काम खराब कर रहे हो। आप किसी सेलिब्रिटी को सिगरेट पीते दिखा रहे हो, कुछ करते दिखा रहे हो, एंड यू आर शोइंग दैट पर्सन एज अ कूल पर्सन। पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसे, तो ये नेगेटिव इफेक्ट आता है इसके ऊपर, तो इसलिए नहीं करना चाहिए ये सब। फिर वो कहता है कि इट मे अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब क्या है, देखो आप एडवर्टाइजमेंट किसी मीडियम से करोगे, ठीक है, आप किसी के थ्रू एडवर्टाइज करोगे, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या आपका इंटरनेट हो, राइट। तो क्या होता है कि आप इन मीडिया हाउसेस को पैसे दोगे, तो नाउ दीज मीडिया हाउसेस आर डिपेंडेंट अपॉन दिस इनकम।
कि आप पैसा दे, कहते नहीं है पैसा फेक तमाशा देख, राइट? तो आपने पैसे दिए एंड यू आर टेलिंग देम टू शो योर एडवर्टाइजमेंट। अब पैसे दे दिए तो भैया उसको दिखानी पड़ेगी। बहुत ही मॉरली अपराइट इंसान होगा वो सर ये ऐड ठीक नहीं है, आप पागल बना रहे हो लोगों को, मैं नहीं दिखाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। जब आप पैसे देते हो तो बस दूसरे को काम करना पड़ता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो। सो दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि ये जो मीडियम हाउसेस है ना, ये प्रेस है, इसका मुंह बंद कर दिया आपने, एडवर्टाइजर्स ने, पैसे दे दे के। तो इनकी जो फ्रीडम है, असली चीज को दिखाते नहीं है ये लोग, जो एडवर्टाइजर चाहता है वो दिखा रहे हैं। सो देयर इज नो ऑटोनॉमी, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके बाद अननेसेसरी कंपटीशन, 100% अननेसेसरी कंपटीशन। आई विल टेल यू हाउ। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, राइट? एडवर्टाइजमेंट्स में आप ये कभी ये चीज नोट करी है, नंबर 1 कंपनी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी आर नंबर 1, रेटेड नंबर 1, टॉपर ऑफ दिस, टॉपर ऑफ दैट। आप ये चीज सोचो कि एक कंपनी हर चीज में कैसे टॉप हो सकती है, राइट? अगर एक टूथपेस्ट है, recommended, always recommended, number 1 toothpaste to be recommended by the dentist, by this, by that, how can every company be number 1? It is impossible. So this is basically unnecessary competition. एक होता है comparative ads करके concept, ठीक है? comparative ads में क्या रहेगा कि जैसे कोलगेट की एड आती है, अगर किसी ने ध्यान से देखी हो तो कोलगेट की एड में 2 पैनल दिखाएंगे। एक पैनल में कोलगेट का दिखाएंगे जिसके अंदर दिखाएंगे कि दांत बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, वो टक करके दिखाते हैं, मार के दिखाते हैं ऐसे, एंड दांत नहीं टूटते। और नीचे हल्का सा एक टूथपेस्ट दिखा देंगे साथ में, ब्लर्ड रहेगा, बट यू कैन इजीली मेक आउट कि वो पेप्सोडेंट है। ब्लर्ड रहेगा, ब्लर करके दिखाएंगे, बट यू कैन इजीली मेक आउट कि ये तो पेप्सोडेंट की पेस्ट ट्यूब लग रही है, और वो तोड़ के दिखाएंगे वो एकदम से टूट जाएगा। सो दिस इज कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग गाइस, जो कि काइंड ऑफ इंडिया में अलाउड नहीं है, बट देन अगेन दीज एडवर्टाइजर्स डू इट। एक को नीचे दिखा के अपने आप को ऊपर करते हैं। तो दिस इज व्हाट अननेसेसरी कंपटीशन। फालतू में आप एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हो, फालतू में एक दूसरे की आप कर रहे हो। अब आपने करा है तो वो दूसरा भी करेगा, तो बैक एंड फ्रो होता रहेगा, एंड फालतू में आप लोग अपने को एक दूसरे को ऐसे ऐसे करोगे। दिस इज नॉट ऑल्सो डिजायरेबल। तो फालतू का आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ओके, तो ये 6 पॉइंट में अभी हमने नेगेटिव्स दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट के। अब हम इन सेम पॉइंट्स को अच्छे दिखा देंगे। तो एडवर्टाइजिंग पहले बोल रहा था कि नहीं 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 ये तो पैसे बढ़ा रहा है, हाई कॉस्ट हो रहा है, तो वो कह रहे हैं नहीं, देयर इज नॉट हाई कॉस्ट हायर प्राइसेस, देयर इज रिडक्शन इन प्राइसेस। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? सो व्हाट इट सेज कि अगर आप एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, पीपल वांट दैट प्रोडक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल क्रिएट दैट प्रोडक्ट मोर। आप उस प्रोडक्ट को और बनाओगे और बनाओगे और बनाओगे। तो जब आप मास प्रोड्यूस करते हो ना कुछ चीज, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ओके, द पर यूनिट कॉस्ट गेट्स डिक्रीज्ड व्हेन यू हैव इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हो जाती है, मतलब कि आप प्रोडक्शन इतनी कर रहे हो कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कम होगी तो उसका फायदा ये कस्टमर्स को होगा। तो इसलिए इट डज नॉट लीड टू हायर प्राइसेस, इट लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। कम हो जाते हैं पैसे, राइट? उसके बाद नेसेसरली ये लोग मोनोपोली क्रिएट नहीं करते, क्योंकि एक जो कस्टमर होता है ना, ही इज अ रैशनल पर्सन है, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चा थोड़ी है कि उसको कुछ भी दिखाया और वो एकदम से उनकी बातों में आ गया। सो नो, इट डज नॉट लीड टू मोनोपोली, बिकॉज पीपल बाय व्हाट दे वांट टू बाय, व्हाट दे थिंक इज गुड। क्वालिटी देख के बाय करते हैं, किसी कैसे बहकावे में आके बाय नहीं करते। तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होती, देयर इज नो एविडेंस एज सच। ओके, फिर वो कहता है कि नहीं, इट लीड्स टू बेटर एलोकेशन, डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय डिमांड। अभी हम क्या बोल रहे थे कि नहीं, जो पैसे ज्यादा देगा सप्लायर उसके पास जाएगा, रिसोर्सेज उसके पास जाएंगी, बेचारे बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर वो कहता है मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत है, अगर डिमांड बहुत है तो आप उसको ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना।
तो इनएफिशिएंट नहीं है, ये ठीक है। दिस एलोकेशन इज थ्रू डिमांड। मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, लोग बहुत खरीद रहे हैं, दैट सिंपली मींस कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। और अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं तो ऑफ कोर्स उसको ज्यादा बनाऊंगी ना, मैं कम थोड़ी बनाऊंगी उसको। तो रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट इनएफिशिएंट। जिसकी डिमांड है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिल रही हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, इट लीड्स टू सोशल वैल्यूज। एडवर्टाइजमेंट में अच्छे पॉइंट्स भी दिखाए जाते हैं और बार बार क्या कहते हैं, एक चोरी से इंसान बचता है। कस्टमर को एक प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको पता है कि कैसे करना है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, खराब कैसे नहीं करना है। सोशल तो, और दूसरा ये कहते हैं कि यार एक बात बताओ, जो ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इतने बच्चे हैं क्या कि एक एक्टर को सिगरेट पीता देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? तो बेसिकली ये कस्टमर पे भी डिपेंड करेगा कि क्या है। तो इसलिए सोशल वैल्यू ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। आप इसके लिए एडवर्टाइजिंग को गलत नहीं ठहरा सकते। ओके इसके बाद है ऑटोनॉमी ऑफ मास मीडिया। वो कहता है कि नहीं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि पैसा जो एडवर्टाइजिंग से मास मीडिया ने कमाया होता है, उससे वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग बन जाते हैं। फाइनेंशियली दे कैन नाउ सपोर्ट देमसेल्व्स। ओके एंड व्हेन दे सपोर्ट देमसेल्व्स, तो क्या होता है कि वो अब ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं, वैसे वो कहते हैं कि नो, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज फॉर दिस पर्सन, ये एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं कर रहा है, बट उसके लिए दे हैव टू रीच दैट लेवल। तो उस लेवल पे पहुंचने, जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो देन द मीडिया हाउस कैन टेक दीज एक्शंस कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब इसका एडवर्टाइज नहीं करूंगी, because they, of course, indirectly they are earning from advertisers, but over a period of time they'll say कि no, I will not advertise for them. So that's how their autonomy increases. Provides useful information, of course. Useful information की तो बात कर रहे हैं हम, कहाँ पर क्या कैसे मिलना है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स, आप इतने सारे लोगों को मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इसके अंदर इन्वॉल्व करते हो, तो ऑफ कोर्स देयर इज क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन का डिस्पर्समेंट एंड पीपल आर रिक्वायर्ड। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। ठीक है, so it's a very important topic guys. इसका आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाओगे, then you write a conclusion. Okay, इसके बाद है essentials कि एक एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए। शुड बी डिजायरेबल, एक्सक्लूसिव, अच्छा मैसेज होना चाहिए, दिमागों में लोगों को बैठ जाए, ऐसे ना हो कि पीपल आर फॉरगेट योर एड, इट शुड बी कैची। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू, हाउ टू मेक अ एड वेरी गुड। सो ये सब पॉइंट्स है इसके। एक्सक्लूसिव होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो। जैसे वोडाफोन का एड आता था तो एक पग दिखाते थे, जो डॉग था इट वाज अ पग। So whenever you used to, like, पग दिखता था, अरे तो वोडाफोन का है, इस तरीके से, like something different, ताकि आप उसको एकदम से पहचान जाओ। It should be believable, attractive and easy to recall. अगर एड इतनी खतरनाक सी है, आपको नाम ही याद नहीं आ रहा, प्रोडक्ट का नाम आपने इतना खराब सा रख दिया है, तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। So these are the desirable features of a ad. अच्छा, रीच कैसे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे ऐड को? तो it should be appropriate media. It should be frequently shown. Right, again, see guys, these are the decisions that has to be taken by the marketer, by the advertiser. वो देखेगा कि कितनी बार मुझे ऐड दिखानी है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, किसको दिखाना है, क्या टाइम रहेगा, ये सारे डिसीजंस विल बी टेकन बाय द एडवर्टाइजर। ओके, टाइमिंग, कितने बजे दिखाया जाए। बच्चे सो जाते हैं 7-8 बजे तक, राइट? आप बच्चों की ऐड दिखा रहे हो 11 बजे, क्या फायदा उस चीज का? सो टाइमिंग इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस टाइम पे मेरा, जिसको मैं टारगेट करना चाह रही हूँ, वो उठा हो, जगह हो, वो बहुत जरूरी है। ओके, एंड उसके बाद दैट इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, एडवर्टाइजिंग। ज्यादा कुछ नहीं था गाइस, आई होप सिंपल ही था वैसे तो ये। ओके, एडवर्टाइजिंग मीडिया, लेट मी डू इट थ्रू पीपीटी। So guys, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो आता है, दैट इज योर प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब है जहां वर्ड्स आ जाते हैं, इंक यूज हो जाती है, लिखावट आ जाती है, वर्ड्स बेसिकली, तो दैट इज योर प्रिंट मीडिया। तो इसके अंदर आपके मैगजीन, ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर्स, फ्लायर्स, ये सब रहते हैं।
तो जब भी आप बोल रहे थे मुझे कि जो ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ये घर घर जाके बताते हैं, तो ये सेल्समैन के थ्रू बताते हैं, राइट? आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर ऐड होती है. बट गाइज सी अगेन इट्स अ नॉन पर्सनल काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट मीडियम, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, रीच के लिए होता है. बट देन इसके लिए आपको अगर ऑफ कोर्स इन चीजों के लिए, जैसे न्यूज़पेपर्स की मैं बात करूं, ये खरीदनी पड़ेंगी आपको, मैगजीन्स खरीदनी पड़ेंगी आपको, ब्रोशर्स जो होते हैं वो यूजुअली कंपनीज आपको नॉलेज के लिए फ्री में दे देती है, ताकि आप उसको पढ़ के उनके प्रोडक्ट्स के बारे में समझ सको. फ्लायर्स का भी यही काम होता है, बट इट इज अगेन अ कॉस्ट टू द कंपनी. Okay, so print media is for dispersing knowledge, information to a larger audience. But the biggest negative of print media is literacy. अगर आपको रीड ही करना नहीं आता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को क्या ही समझोगे, नहीं समझ सकते हो आप, राइट? मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, राइट? एंड सारे के सारे जो एक जगह पे लोग हैं, दे कांट रीड, अनपढ़ लोग हैं, तो प्रिंट मीडिया का मेरा क्या काम? कोई फायदा नहीं है प्रिंट मीडिया यूज करने का. सिमिलरली अगर लैंग्वेज आपने कोई ऐसी यूज कर दी, सबको हिंदी आती है, गांव के लोगों को हिंदी आती है, हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पेपर भेज दिया वहां पर, इंग्लिश में ऐड दिखा दी है, उनको कुछ समझ नहीं आएगा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वट एवर मीडियम यू आर चूजिंग, इट हैज टू बी वेरी अप्रोप्रिएट. जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो. ओके, एडवांटेजेस अगेन ब्रॉड. सी गाइस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन इतना करने वाला नहीं है, तो आई विल बी स्किपिंग इट. ओके, जो मेन पॉइंट्स है आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ब्रोशर अगेन आई टोल्ड यू कि ये लोग कंपनीज जो होती हैं अपने मशीन, अपने कॉलेज या किसी भी चीज के लिए एडवर्टाइज करने के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए दिखाती है. न्यूज़पेपर में ऐड आपको अगेन स्लॉट चूज करना पड़ेगा कि इस पेज पे मेरी ऐड दिखाइए, और उसके अकॉर्डिंगली आप पैसे देते हो, एंड दैट ऐड हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन. ब्रोशर में क्या रहेगा? ब्रोशर आपने किसी को एक बार दे दिया तो काम खत्म, बट ब्रोशर छपवाने में कॉस्ट ज्यादा आएगी. इट इज नॉट दैट चीप टू गेट ब्रोशर्स, और ब्रोशर लेने भी वही आएगा आपके पास जो इंटरेस्टेड रहेगा. उसके अंदर आप अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो. दैट इज अ ब्रोशर. एंड फ्लायर्स एक छोटे छोटे पेपर होता है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट, कंपनी या किसी भी नई इंफॉर्मेशन के बारे में चीज लिखी होगी, और यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर वेरांडे में या गेट के ऊपर ये चिपका के चले जाते हैं. सो चिपका के चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंसान बाहर आएगा वो देख लेगा. सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन हो जाती है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर्सनल टच आ जाता है, राइट? बट देन जिसको नहीं फर्क पड़ता उसने अपने हाथ में लेके उसको क्रश ही कर देना है. जैसे इवन आप अगर मार्केट्स में भी घूम रहे होते हो, कितनी बार लोग आपको अपना बिजनेस कार्ड देते हैं या आपको फ्लायर पकड़ाते हैं. कई लोग तो बहुत रिस्पेक्टफुली वापस कर देते हैं कि नहीं सर मत दीजिए, मैं फेंक ही दूंगी इसको, और कई लोग लेके उसके सामने इसको ऐसे टक करके फेंक देते हैं. सो अगेन इट कोचिंग डिपेंड्स. सेंटर्स में ऐसे होता है. सॉरी, कोचिंग सेंटर्स वाले ऐसे करते हैं. हाँ, एक बहुत पेज लोग है, ऐसे करते हैं. कोई नया सैलून खुला है आपके इसमें, कोई नई किराने की शॉप खुली है, दे ऑल डू इट, ताकि लोकेलिटी में एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए कि वी आर देयर एंड वी आर सर्विंग. इस तरीके से इंफॉर्मेशन. सॉरी, इलेक्शन के समय वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है. यस, एंड बहुत ही लाइक इनइफेक्टिव रहेगी, बिकॉज जिसको वोट करना है वो तो उसको वोट करेगा, आप कुछ भी कर लो. एंड ओके, सो दिस वाज योर फ्लायर. प्रिंट मीडिया हो गया आपका. अच्छा, मैगजीन्स का नहीं है इसमें. सो गाइस, मैगजीन्स का एक बहुत अच्छा फायदा ये रहता है कि मैगजीन्स आपको अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करती है. एंड बट इसका नेगेटिव क्या रहेगा गाइस कि जैसे अगर सपोज करो मुझे फैशन पसंद है, तो आई विल ओनली बाय फैशन मैगजीन. ठीक है, तो इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी जरूरी पड़ती है. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो मैगजीन खरीदोगे ही नहीं. जैसे अगर मैं बात करूं किसी को गाड़ियां पसंद है, तो वो ओवरड्राइव खरीदेगा, वो फैशन मैगजीन थोड़ी खरीदेगा. तो अकॉर्डिंगली आप एडवर्टाइजमेंट्स इन मैगजीन्स में प्लेस करते हो. जैसे अगर सपोज करो कोई ऑयल है,
या कोई बाइक की या कार की एक्सेसरी है, वो आप फैशन मैगजीन में थोड़ी दिखाओगे, वो आप आउटडोर उसमें ओवरड्राइव में दिखाओगे जहां पर सारी कार्स और बाइक्स और इन सब चीजों की एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ रही है। तो इन मैगजीन्स के अंदर भी आप एडवर्टाइजमेंट्स अपनी प्लेस कर सकते हो। बट यस, दीज मैगजीन्स हैव टू बी बॉट, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं, सस्ती इतनी नहीं होती हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए ज्यादा। बट देन अगेन ये शौक, जिनको शौक होता है वो खरीदेंगे। और फिर मार्केट भी वैसे ही सेट होती है, आगे पीछे आप सेट थोड़ी करते हो। आपको आपका टारगेट मार्केट ही लेडीज है जो हाई एंड फैशन देख करती हैं, तो आप उसी तरीके के मैगजीन में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करोगे। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में गाइस, योर बिलबोर्ड्स, कार साइंस, पोस्टर्स, इलेक्ट्रिक साइंस, नियॉन साइंस, जो एक लार्ज एरिया में आपने बोर्ड पे लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ताकि आता जाते लोग इसको देख सके। किसी किसी का ध्यान जाता है, किसी किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब अपनी मेट्रो ही देख लो, मेट्रो के ऊपर भी तो अब इन्होंने हल्की सी पतली सी फिल्म लगा के एडवर्टाइजमेंट डालनी शुरू कर दी है। That is an example of outdoor advertising। जो मेट्रो स्टेशन पे बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे और वहाँ लिखा हुआ कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे ट्रेनों के डिब्बों पे लगे रहता है पूरा पंजाब नेशनल बैंक का। राइट एडवर्टाइजमेंट है। दैट इज एन आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को दिख सके। इलेक्ट्रिक साइंस, बिलबोर्ड, पेंट एंड पोस्टर्स, कार साइंस, कार्स के ऊपर भी लिखा होता है, आपके ऑटो पे लिखा होता है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। जर्सी पे होता है, प्लेयर्स के जर्सी पे 100%। आप वो चीज छोड़ो, लेट मी टेल यू, पीपल रेंट देयर बॉडीज टू राइट। आई वाज शॉक्ड व्हेन जब मेरे को ये पहली बार पता चला था। तो व्हाट हैपेंस इज कि दिस पर्सन, आई थिंक यूएस में कोई तो लड़का वड़का कुछ तो था, एंड ही वाज लाइक कि यू कैन एडवर्टाइज ऑन माय फोरहेड एंड यू हैव टू पे मी दिस मनी। यू कैन एडवर्टाइज ऑन माय चीक, यू कैन एडवर्टाइज ऑन माय नेक, ऑन माय चेस्ट। टैटू मीडियम में, टैटू में नहीं, कंपनी एडवर्टाइजमेंट, पेंट लगा के कुछ कर दो। So it is like you advertisement, you are basically trying to advertise through you, and people used to earn money for that। तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा ये क्या तरीका है, ये तो थोड़ा रिडिकुलस हो गया कि अपने माथे पे आपने कंपनी का नाम लिखवा रखा है। इसके अलावा जैसे बाहर वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हैं रेस्टोरेंट के बाहर, वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। कॉस्ट्यूम्स पहनते ताकि आपके नजर उन पे जाए। आप देखो गाइस, हम लोग अगेन डेली बेसिस पे इतना सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। डेटा कंज्यूम करने का मतलब है कि हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, ये भी। अब आप ये चीज सोच के देखो, अगर तो आपको कोई ना कोई किसी ना किसी बारे में बता रहा होता है, मेरा प्रोडक्ट ये, मैं वो, राइट। कहीं भी आप नजर घुमाओ आपको ऐड दिख जाएगी, बोर्ड दिख जाएगा, आप पढ़ने लग जाओगे, राइट। तो आपके ध्यान एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक कैसे खींचा जाए, तो वो इसलिए अट्रैक्टिव चीजें करेंगे, कलरफुल चीजें करेंगे, ताकि आपका ध्यान जो है ना वो अपने तक खींच सके इस तरीके से। ओके, कार साइंस, सेवरल इवेंट्स आर क्रिएटेड। ओके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका 3 चीजें आ जाएंगी जो ज्यादा लोगों के लिए आप डिसम्बर्स करते हो। ओके, इट कैन बी थ्रू टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। टेलीविजन पे ऐड तो आपने पता ही होगी, आजकल तो ओटीटी का जमाना है, एंड किसी भी चीज को बस आप गूगल करो। जैसे सपोज करो अगर मैंने से जैकेट्स करी हैं, बॉम्बर जैकेट, कोई भी तरीके की जैकेट अगर मैंने गूगल गलती से कर दी है, तो व्हाट विल हैपन, आई विल गो टू इंस्टाग्राम, मुझे वहां जैकेट्स दिखेंगी। आई विल गो टू फेसबुक, मुझे वहां जैकेट्स दिखेंगी। आई विल गो टू ट्विटर, मुझे वहां जैकेट्स दिखेंगी। आई विल गो टू यूट्यूब, मुझे वहां जैकेट्स दिखेंगी। सो एडवर्टाइजमेंट फॉलोज यू। ये बेसिकली इसके एसईओ के थ्रू होता है, कि एक कुकीज के थ्रू होता है। आपको पता होगा, आप तो कंप्यूटर्स के बच्चे हो, कि कैसे आपके पीछे भाग के ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। एंड मैम इनको तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कहते हैं ना। सॉरी, सोशल मीडिया, मैम सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, लाइक इंस्टा, एफबी एंड ऑल। हाँ, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट होगी ना, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होंगे ना सारे ये। अब आप देखो कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, आपके हॉटस्टार हो गया,
हाँ, हॉटस्टार हो गया आपका, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स पे अभी तक है कि ऐड नहीं आती, बाकी हर जगह पे आई थिंक अमेजोन पे भी अमेजोन में ऐड नहीं है, नहीं है। मैम अमेजोन से प्राइम पे सिंपल है। आती है बट उन्हीं के शोज की आती है। हाँ, तो यूट्यूब पे चले जाओ, यहाँ सब जगह एड्स है क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं ना इसके लिए, एड पे आप दिखाओगे पैसे मिलेंगे। अगर आपको ये ऑनलाइन सोशल एडवर्टाइजमेंट को समझना है ना, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स को, तो प्लीज वॉच दैट मूवी कॉल्ड द सोशल डिलेमा व्हिच इज ऑन नेटफ्लिक्स। हाँ मैम, वो मैंने देखा है वो सोशल डिलेमा, इतना इतना इंटरेस्टिंग बहुत है भयंकर और है। इतना अमेजिंग है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक एडवर्टाइजर आपके दिमाग के साथ खेलता है। वो आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके फोन में इस तरीके से चीजों को झांक झांक के देख रहा होता है और आपके बारे में पता लगा रहा होता है और उसी तरीके की रिकमेंडेशंस आपको दिखाता है। तो एल्गोरिदम ऐसा बनाया है उन्होंने। यस मैम, वैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं मैम, जैसे अमेजोन पे लैपटॉप मान लो तो मैम इंस्टा पे लैपटॉप की एड से आती है। राइट वो मैम बेसिकली गूगल कुकीज होती हैं। गूगल तो व्हेन यू बेसिकली गो टू अ वेबसाइट, कुकीज का आपको पता होगा क्या सीन रहता है। यस मैम। कुकीज आ जाती हैं एंड द कुकीज टेक बैक दिस इंफॉर्मेशन टू द वेबसाइट और वो बताती हैं कि ये इंसान अभी ये देख रहा है तो आप इसको ये चीज दिखाओ। यस मैम, सब पता रहता है मैम उनको। राइट, एंड यू नो व्हाट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, वो आपको बार बार दिखता है ना, आप बोलोगे यार ये तो अच्छा लग रहा है, ले ही लेती हूँ। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन विद द एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा, रेडियो क्या रहेगा? रेडियो इज फॉर पीपल हु यू नो, यहाँ लैंग्वेज बैरियर तो चलो रहता है, बट द थिंग इज कि यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है और सुनना आसान होता है पढ़ने से। तो इट इज बेसिकली द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। जो आप इवन रिक्शे वालों को देख लो, दे हैव रेडियोस विद देम, गाने चल रहे होते हैं उसके ऊपर। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज, टारगेट मार्केट इज, आप ये मीडियम्स चूज करते हो। एफएम रेडियो पे बहुत सारे जिंगल्स आते हैं, बहुत सारे गाने वाने आते हैं, तो आप वो गाना सुन के आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, जिंगल सुन के बैठ जाती है वो चीज आपको। चीप है, बहुत चीप है रेडियो यूज करना, बट देन अगेन अगर आपको रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो यू शुड मेक श्योर कि एटलीस्ट आपकी टारगेट ऑडियंस रेडियो खरीदती हो। ऐसा ना हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस रेडियो नहीं खरीदती और हो गया काम। टेलीविजन यू नो कि बार बार ऐड दिखाना है प्रोग्राम्स के बीच बीच में, 20 मिनट का ऐड होता है, सॉरी 20 मिनट का प्रोग्राम होता है, 10 मिनट की ऐड होती है, ऐसे रहता है। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, ये आपके वैसे ना कोर्स में है नहीं तो इसको आप रहने देना। सर्विस भी है नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग नहीं है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग को बता रही इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है आपके उसके लिए। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग भी यू नो कि सेलिब्रिटीज को जब यूज किया जाता है। आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत चल रही है। इन्फ्लुएंसर वर्ड सुना होगा आपने, आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। This product has this फायदा, this product has this फायदा, and honestly I'm speaking, be very careful of these influencers। इनको आधी चीजें पता नहीं होती क्या बात कर रहे हैं। लोग समझते हैं यार यूट्यूब की वीडियो है बिल्कुल ठीक होगी, नहीं, बिल्कुल कभी कभी एकदम से फुद्दू चीजें बात कर रहे होते हैं, रबिश बात कर रहे होते हैं, एंड यू थिंक यार इसको कितनी नॉलेज है। स्पेशली अगर मैं फिटनेस की बात करूं, फिटनेस जो जिम विम की बातें चल रही होती हैं, आधी बातें इतनी अजीब अजीब कर रहे होते हैं यूट्यूब पे बैठ के लोग, उनको लगता है कि दे आर द एक्सपर्ट्स, मैं नहीं होते एक्सपर्ट्स। तो बी वेरी केयरफुल, डोंट गेट इन्फ्लुएंस टू सच लेवल्स। ओके, so this was your advertising and its medium. So guys, आइडियल मीडियम कौन सा रहेगा? आइडियल मीडियम आपके लिए वो रहेगा जो सस्ता हो, सब तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, राइट? इट शुड हैव अ रीच, इट शुड हैव अ गुड मैसेज, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बार बार आता रहे। तो दीज आर योर रिक्विजिट्स ऑफ अ आइडियल मीडियम। मीडियम कौन सा अच्छा रहेगा? डायरेक्ट मेल में क्या रहता है गाइज, ये जब डोमिनोज आया था ना तो यूज्ड टू डू डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। हाउ? वो घर पे आपके ना चिट्ठी के रूप में they used to send coupons, they used to send your brochures। तो डायरेक्ट मेल का मतलब होता है कि डायरेक्टली कस्टमर के घर में आप कोई पैम्फलेट या कुछ ऐसे पोस्ट कर देते हो। तो
requisites मैंने बता दिया. Evaluation का आप ये guys पढ़ लेना. This is basically a rough comparison between the social media, these mediums. और उसके बाद choice, of course, आपका क्या location है, आपका पोजीशनिंग क्या है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी चाहते हो. अगेन सिमिलर पॉइंट्स है कि आप कैसे चाहोगे आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, आपकी ऑडियंस क्या है, आपके पैसा कितना है, आप कितनी कवरेज चाहते हो, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंचे. अब आपने कवरेज की चीज है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बूस्ट कराते नहीं, ऐड को बूस्ट पेपर भी देते थे वो एक्स्ट्रा में, अभी भी राइट. देते तो आप जब आप फेसबुक को एक्स्ट्रा पैसे देते हो ना, तो वो आपका एड ज्यादा लोगों तक दिखाता है. दैट इज द कवरेज. कितने लोगों तक आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट पहुंचे. तो हर चीज के पैसे है आजकल. एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि बस क्या ही बताऊं मैं. और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती हैं गाइस, कभी कभी आपके ऊपर लाइक टाइम नहीं होता, आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो यार एक काम करो ना, जो एडवर्टाइजमेंट बनाने में स्पेशलाइज्ड है उनको बोलो जाके. So these advertising agencies are nothing but these people are the experts of advertisements. ये आपकी रिक्वायरमेंट ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वो एड क्रिएट करेंगे. They will create ad for you. आप उनको पैसे दे दोगे बस. That is your. अच्छा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने अच्छे एम्प्लॉइज हैं, लोग हैं, तो आप खुद के लिए एड बना लो, मत बनवाओ एजेंसी से. So again it depends upon what your requirement is. Okay. Now advertisement का खत्म हो गया है. Now we are coming to home channel distributions. जैसे यूनिट 7 पढ़ाएंगे ना, स्टॉक मार्केट. यूनिट 7 जो स्टॉक मार्केट है. क्या है? यूनिट 7 स्टॉक मार्केट जो चैप्टर है. स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट ये दैट. अगर आप आपने ज्वाइन किया? नो मैंने आज ही ज्वाइन किया. नहीं आज ही ज्वाइन किया है, बट आपने लाइक इस टाइम ज्वाइन किया है या क्लास के स्टार्टिंग में भी थे आप? नहीं, थोड़ी बाद ज्वाइन किया. राइट. दैट्स व्हाई यू डोंट नो. आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि आई डोंट डू ब्लॉक 2 इमीडिएटली. ब्लॉक 2 इज योर चैप्टर 7 व्हिच इज योर फाइनेंस. ओके, ये सब आप कह रहे हो 5 6 7, ये अभी टॉपिक्स डिस्कस नहीं हुए हैं बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग विद द A2 ट्रेड. तो इसलिए हम लोग पहले B3 B4 करेंगे एंड देन हम B2 करेंगे व्हिच इज योर दोस चैप्टर्स फाइनेंस वाले. ओके मैम. ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी वहीं से आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा यही पहले टॉपिक्स कर ली जाए, क्योंकि फिर आप फाइनेंस करके फिर दोबारा टॉपिक्स पे आओगे. डजंट मेक सेंस टू मी. दैट्स व्हाई आई स्किप फाइनेंस एंड फर्स्ट डू दीस एंड देन कम बैक टू दैट. तब तक आप थोड़े फेमिलियर भी हो जाते हो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो फाइनेंस पढ़ने में दिक्कत नहीं आती. ओके, नाउ कमिंग टू होम ट्रेड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. एडवर्टाइजिंग से हमें यूटिलिटी ऑफ नॉलेज मिलती है, तो होम चैनल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमें यूटिलिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम मिलती है. राइट. आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है आपके पास, एंड दैट प्रोडक्ट इज सिटिंग इन योर प्रोडक्शन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है उसका. दैट प्रोडक्ट नीड्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. मतलब जहां वो चीज आप बना रहे हो और जो वो कस्टमर यूज कर रहा है, आपको वहां तक पहुंचाना जरूरी है. सो दिस इंट्रिकेट नेटवर्क फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड एंड सेंड टू वेयर द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, that network which ensures this smooth and continuous flow is nothing but your channel of distribution. How do you distribute your goods? बांटते कैसे हो आप अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि जब प्रोडक्ट की डिमांड हो, जहां हो, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, आप उसको बेच सको. आपके प्रोडक्ट्स पड़े हैं आपकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, या आपके गोडाउन में प्रोडक्ट्स पड़े हैं और वो पड़े हुए हैं. यहाँ रिटेलर के पास दुकान में सामान नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा आपके पास नहीं है, कोई नहीं, मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ. कमी थोड़ी है किसी के पास, प्रोडक्ट्स तो रहते हैं. तो इसमें लॉस किसका है? इसमें लॉस रिटेलर का है, इसमें लॉस आपका है. दूसरे दुकानदार का मजे हो गए, उसके वो अब खरीदेगा जाके वहां से. सो दिस लॉजिस्टिक्स, दिस ऑपरेशन ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल
at the right time, at the right place is done by channel of distribution. So these channel of distribution are nothing but middlemen, intermediaries through which this flow of goods and services is done uninterruptedly. ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर के बीच में बैठे होते हैं, इसलिए इनको मिडलमैन बोला जाता है, इंटरमीडियरी बोला जाता है, क्योंकि बीच में बैठे होते हैं और इनके थ्रू आप चीजें आगे बेचते हो. अगर तो आप में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, इतनी एक्सपर्टीज है, इतना टाइम है, इतने लोग हैं, तो आप डायरेक्टली चीजें बेच दो कस्टमर को. और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप लोगों को बोल दो भैया हेल्प कर दो हमारी सामान पहुंचाने में. ओके, सो दैट इज योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विच यू आर फैसिलिटेटिंग द गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे. not just within international Indian borders but internationally as well. Okay, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड की जब हम बात करते हैं, तो क्या हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान पहुंचाना होता है, तो उसके लिए आप इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हो एंड दे हैव वेरी सिमिलर फीचर्स. अब गाइस जो ये पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो मैं बार बार नहीं करूंगी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग राइट नाउ. ठीक है, तो क्या होता है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए खरीदेंगे, आपके लिए असेंबल करेंगे. These people will have the funds and everything. तो ये लोग आपके लिए, आपसे खरीदेंगे, आपके लिए असेंबल करेंगे और आगे बेच देंगे. स्टैंडर्डाइजेशन एक पर्टिकुलर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए. आपने प्रोडक्शन करी और आपने होलसेलर रिटेलर को चीजें पकड़ा दी. अब होलसेलर रिटेलर क्या करेगा, वो देखेगा कि किस क्वालिटी का क्या प्रोडक्ट है. जैसे अगर मैं सेब की बात करूं, सेब की 10 क्वालिटी होती है, तो उसको क्वालिटी वाइज, ग्रेड वाइज अलग अलग करके रखना, ये होलसेलर रिटेलर का काम है, मिडलमैन का काम है. ठीक है, एक क्वालिटी 100 रुपए की, दूसरी क्वालिटी 150 रुपए की, तीसरी क्वालिटी 200 रुपए की, आपने ग्रेड में डाल दिया और सिमिलर क्वालिटी की चीजें शेप, साइज, कलर के हिसाब से अलग अलग कर दिया. दैट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ब्रांडिंग, अपना ब्रांड लेबल चिपका देना और उसको बेचना आगे. पैकेज करना, पैक करना उसको. सेब आपके पास कट्टे के कट्टे, बोरी के बोरी पड़े हैं, उनको कार्टन्स में डालना, वो घास फूस में डाल के उनको अच्छे से लगा के उसमें उस कार्टन को बंद करके रखना, ये पैकेजिंग होती है. लाइक अगर आपके पास कोक आ रही है, कोका कोला, उसको बॉटल्स में डाल के रखना, पैक करके रखना चीजों को, ताकि वो टूटे ना, खराब ना हो. बिकॉज एकदम से आप भी चीजें नहीं आगे बेच सकते. चीज आपके पास आई है, पहले उसको आप बेचने लायक करोगे. तो जो बेचने लायक का जो सारा ये फंक्शंस रहते हैं ना, दिस इज डन बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. रिटेलर्स को बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको रेडीमेड सामान मिलता है, वो आगे बेच देते हैं. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अ रूट, अ पाथ that a product takes from where it is produced to where it is consumed. ठीक है, चैनल ऑफ प्रोडक्शन में आपको भी समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बात कर रही हूँ. लेट मी शो यू द डायग्राम्स. डायरेक्ट चैनल, ओके, इसके थ्रू समझाने दो. या so guys, as you can see, this is basically a diagram of your channel of distribution. कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं जो कंज्यूमर, हम आम लोग कंज्यूम करते हैं? दूध, चाय, घी, पानी, कपड़े, टीवी, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स. ओके, एंड दीज कंज्यूमर गुड्स के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 4 है. डायरेक्ट चैनल में क्या है, प्रोड्यूसर ही बना रहा है, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर ही बेच रहा है. You have direct contact with the customer. You are directly selling it to the customer. You don't need anyone in between. कोई चाहिए नहीं आपको. तो ये जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि no one is in between. डायरेक्ट चैनल है ये. जैसे बाटा है, बाटा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट चैनल. वो खुद ही बनाता है और अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचता है. ओके, प्रोड्यूसर जब रिटेलर को कांटेक्ट करे और रिटेलर आगे
कंज्यूमर को कांटेक्ट करे, दैट इज योर फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर रिटेलर के पास सामान भेज रहा है और रिटेलर आगे बेच रहा है। सो देयर इज समवन इन द मिडल ऑफ द प्रोड्यूसर, so that is why we call them middlemen, इसलिए वो बीच में है। You have second level and then you have third level of distribution. थर्ड लेवल में क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर के पहले आप ब्रोकर को बेचोगे, ब्रोकर के बाद होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। ओके, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चैनल। अगर आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा टाइम खुद सोचो किस में लग रहा होगा, लास्ट वाले में। सबसे कम टाइम किस में लग रहा होगा, पहले वाले में। बट देन अगेन हर कोई डायरेक्टली चीजें नहीं कर सकता, बिकवा सकता, उसको लोगों की जरूरत लेनी पड़ती है। अब गाइस इन सब चैनल्स के तरीके देखो। प्रोड्यूसर को 10 रुपए का सामान पड़ा, उसने 12 रुपए में कंज्यूमर को बेच दिया। ओके, यहाँ पर प्रोड्यूसर को 10 रुपए का पड़ा, उसने 12 रुपए का बेचा, रिटेलर ने उसको आगे 15 रुपए का बेच दिया। यहाँ पर प्रोड्यूसर को 10 रुपए का पड़ा, उसने 12 का बेचा, होलसेलर ने 15 का बेचा, रिटेलर ने 20 का बेचा। ओके, फिर प्रोड्यूसर ने इसको बेचा, इसको बेचा। आप देख रहे हो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जनरली ऐसा ही होता है। और इसकी वजह से कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो गवर्नमेंट केम अप विद द थिंग कॉल्ड एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे हम सरकार ने किसानों के लिए डायरेक्ट बोल दिया था क्या, जैसे सरकार ने किसानों के लिए करा था डायरेक्ट, मैम अपनी खुद का बेच सकते हैं मैम डायरेक्ट। हाँ तो बेचो ना, किसने मना किया? मैम पहले नहीं बेच सकते थे ना मैम। सॉरी मैम पहले नहीं बेचते थे ना मैम, पहले earlier what was happening कि it was mandatory for the farmers to sell it to I think some brokers or something, गवर्नमेंट के जो एजेंट्स रहते थे, so they were looting them, बहुत पैसा बीच में खा रहे थे, तो इसलिए हटाया गया। राइट, सी क्या होता है, कभी कभी एक फार्मर के पास ना इतना टाइम नहीं होता या इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इतना सारा प्रोड्यूस उठा के मार्केट में लाए और बेचे। तो इसलिए कभी कभी आपको इन मिडलमैन की जरूरत पड़ती है। और जब आप इन मिडलमैन को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो जितना सस्ता सामान कस्टमर को पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग भी तो प्रॉफिट खाएंगे, ये भी तो बिजनेस खोल के बैठे हैं, ये फ्री में थोड़ी काम कर रहे हैं आपके लिए। So that is why the government came with the thing called maximum retail price, minimum retail price. So maximum retail price क्या होता है? अगर कस्टमर कोई भी गुड है और इसने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि MRP is ₹20, राइट? जनरली गाइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहती है ना एक प्रोडक्ट बनाने की, वो पैसे में होती है। 50 पैसा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, उसको आप बेचते हो 10 रुपए में, सीधा कितना प्रॉफिट हो गया? डबल प्रॉफिट। यस सर, राइट। सो अब वो डबल प्रॉफिट अगर 5 रुपए की चीज है और कस्टमर को 20 रुपए में मिल रही है, तब भी चलो कस्टमर के लिए इट इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि बीच में जो ये 15 रुपए का जो फर्क है ना, ये आपके मिडलमैन कमा रहे होंगे पैसे। राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप ये चैनल को करोगे। अगर द प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बल्की, कि अगर वो बार बार लोगों के हाथ से चेंज होके जाएगा तो वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, तो आप सबसे शॉर्टेस्ट चैनल यूज करोगे। अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, पेरिशेबल नहीं है, खराब नहीं होगा, चलता जाएगा, जैसे मर्जी उसको पकड़ के रख दो, कर दो, यू कैन अफोर्ड टू यूज द लॉन्ग चैनल। लॉन्ग चैनल में टाइम ज्यादा लगेगा,
लॉन्ग चैनल में पर आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने सारे हाथों से जाके गुजरेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू चूज द चैनल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कंज्यूमर गुड का आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, चैनल ऑफ प्रोडक्शन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। सिमिलरली इंडस्ट्रियल गुड्स का भी रहता है। अब इंडस्ट्रियल गुड्स आर स्पेसिफिकली वेरी बल्की, वेरी लार्ज, वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो यू वांट कि कम से कम लोग इन्वॉल्व हो और कम से कम मेरा नुकसान हो। सो प्रोड्यूसर सेम रहेगा, तो कस्टमर विल बिकम द इंडस्ट्रियल बायर। वो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स खरीदेगा। हम तो आम लोग तो खरीदेंगे नहीं अब प्लेन का इंजन जाके, ट्रक व्रक खरीदेंगे नहीं हम आम लोग। जिसका बिजनेस होगा, इन गुड्स में डील कर रहा होगा, वही खरीदेगा। तो यहाँ पर आपका होलसेलर रिटेलर ना होके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, इंडस्ट्रियल सप्लायर रहेगा। एंड यू विल हैव एजेंट। अच्छा, एजेंट क्या करता है? अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि रिटेलर इज समवन, अभी हम आगे दोबारा भी पढ़ेंगे, जिसके पास वैरायटी बड़ी रहती है, सामान ज्यादा रहता है। like he will have n number of things with him, but quantity would not be more. अगर उसके पास वैरायटी ज्यादा है तो एक या दो चीजें उसके पास नहीं रहेंगी जैसे होलसेलर के पास होती हैं। होलसेलर के पास चीजें बल्क में रहती हैं, तो कंपैरेटिवली रिटेलर विल हैव लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड बट विद मोर वैरायटी। तो जब किसी एजेंट कोई भी होना, ब्रोकर कोई भी होना, वो दो पार्टीज को साथ में लेके आएगा, उनकी नेगोशिएशन कराएगा, अपनी कमीशन खाएगा। तो जब प्रोड्यूसर सपोज करो मार्केट में इतना नया है कि उसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि मैं अपना सामान किस तरीके से बेचूं, कैसे करूं, सो ही विल कॉन्टैक्ट अ ब्रोकर। दिस ब्रोकर विल से, अच्छा आपको होलसेलर चाहिए, मैं चलो बात कराता हूँ आपकी। दिस पर्सन विल ब्रिंग द होलसेलर टू हिम। द होलसेलर विल से, अच्छा सर ठीक है, मैं आपसे सामान खरीद लूंगा, इतने इतने में दे दो। तो प्रोड्यूसर से भी कमीशन खाता है एजेंट, और होलसेलर से भी कमीशन खाएगा एजेंट। That is how this agent earns. So यहाँ भी वही agents involved है। कभी कभी agents directly भी बेच देंगे, और कभी वो industrial distributor और producer को साथ लेके आएंगे and will earn a commission. Okay? So these are the channel of distribution. दोनों में ही चार है, depending upon the product आप इसको आगे पीछे बेचते हो। यही आपकी है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉलिसी है, आप खुद करना चाहते हो, दूसरे से कराना चाहते हो, प्रोडक्ट कैसा है, पेरिशेबल है कि नहीं है, टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या वो इजीली आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सप्लाई का रेस्ट्रिक्ट, आपकी सप्लाई कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, एंड मिडलमैन कौन कौन से अवेलेबल है आपके लिए, कितने कंपटीशन में है। लाइक कई लॉजिस्टिक्स वाले बहुत जल्दी भेज देते हैं। जैसे अगर मैं कुरियर की बात करूं, कोई अच्छा कुरियर जैसे डिलीवरी होगा या अगर आपका DHL होगा, these people send the goods very quickly, whereas अगर मैं एक्सप्रेस वी की बात करूं, पिकर की बात करूं, ये अच्छा खासा हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगा देते हैं चीज बेचने में, भेजने में। so these middlemen again have costs and have competencies. जो अच्छा होगा वो पैसा ज्यादा लेगा आपसे, तो ये आपको कंसिडर करना है। आपकी सेल कितनी चल रही है, आप कितना पैसा खर्च सकते हो, तो you on your capability you decide what type of channel of distribution you have to hire. Company decision होता है ये। Excuse me, ma'am. Yeah. I just wanted to confirm or ask something. It's that the agents are the ones who basically alter, or depending on the quality and the quantity of the amount of the goods, they are the one who decide the price of the, like there is no fixed price of a certain good, or like the edible things like चावल का कोई फिक्स प्राइस नहीं है। अगर इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी है, तो ये प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, एंड समटाइम्स ये थोड़ा इसमें मिला भी देते हैं चीज़ें, सो दैट adulteration is another topic. Okay? And of course suppose करो मैंने एक क्वालिटी ऑफ चावल बनाया, उसका आप एक नाव तोल करके एक प्राइस पे आते हो। of course it is very difficult to detail, like but एक स्टेबल स्टैंडर्ड प्राइसेस गिवन होते हैं इन चीजों के, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन नेगोशिएट आप करते हो, बात करते हो। और अगर कोई सपोज करो आप किसी से बात कर रहे हो, एक बायर कह रहा है, एक होलसेलर कह रहा है, सर मैं आपसे ये 100 क्विंटल लूंगा, आप मुझे 50 रुपए के हिसाब से बेच दो। ठीक है, अगर आपको पड़ेगा तो आप बेचोगे, नहीं तो आप दूसरे होलसेलर के पास जाओगे, दूसरा होलसेलर कहेगा सर मैं आपको 70 रुपए दे दूंगा इसके,
अगर आज से 70 रुपए दे रहे हो तो ठीक है सर, आप ले लो मेरे से. So it depends what kind of wholesaler is there या person is there who is wanting to buy these products from you. आप तो चाहोगे ना एज अ सेलर कि आपका सामान महंगे से महंगा बिके. Yes, ma'am. और एडल्टरेशन का जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ऑफ कोर्स एडल्टरेशन तो होती ही होती है. एक चीज की क्वांटिटी, इसको इसलिए इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड, हैजर्डियस ट्रेड, कि आप दूसरे का नुकसान करा रहे हो. ऑयल के अंदर आपने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ अपनी चीज को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा बेचोगे आपको उतना प्रॉफिट है, तो उसको ज्यादा करने के लिए आप उसके अंदर मिट्टी कुछ पत्थर वत्थर डाल देते हो, विच इज अगेन वो टॉपिक हम डिस्कस ही नहीं कर रहे. एडल्टरेशन वी आर नॉट कंसर्न्ड विद राइट नाउ. Okay, ma'am. ओके, एडल्टरेशन आपको कहीं नहीं लिखना है, बट या इट हैपेंस. संजय, समीर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया हुआ है. समीर झा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो. गाइस डू वन थिंग. अब थोड़ा हम लोग इसी क्वेश्चन पे आ रहे थे, तो नाउ प्लीज पुट योर अटेंडेंसेस. द टाइम इज 12:35. प्लीज स्टार्ट पुटिंग योर अटेंडेंसेस. मैं 2 मिनट पानी पी लूं जरा. So the attendance has started from Divyan Singh. Okay, please put your attendances. अभी तो गाइस जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, these topics are pretty like I would say कि not very rocket science kind of topics. अगर आप इसको एक बार रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, तो things will definitely get clearer for you. थियरी में ना सिर्फ एक ही सीन रहता है कि it requires your time. It requires your time. और क्लास का बस यही फायदा है कि एटलीस्ट आपकी एक तरह से मुलाकात हो जाती है सिलेबस के साथ. खुद पढ़ने बैठोगे आप बोलोगे अरे भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, why it is happening with me, you know. But एक बार क्लास में if you just listen to bits and pieces of what I summarize and tell you, so when you sit for your own self study, things will not be that difficult. Whereas अगर आप अपने आप ही इतना सारा करने बैठोगे ना, तो you will be like it's very unfair, क्योंकि it's a lot. और आप लोग BCA के बच्चे हो, I think most of you are not from commerce background. So some these topics will be little bit kind of new to you. So इसलिए this is very important कि आप लोग class attend करो, and you know self study तो of course important है ही, no doubt. Yeah, please keep putting your attendances. Divyan Singh से start है, and let me get back to it. Ma'am, I have one more question regarding the exam. Ma'am, do you know the syllabus of eco exam? We have exam next month. Eco 1 का? Yes, ma'am. आपके पास मटेरियल नहीं है? आप मटेरियल है एग्जाम के लिए? एग्जाम पूरी बुक आने वाली है या फिर ओनली अ फ्यू पार्ट्स आर कमिंग? आप बताओ, आपने आज तक आई थिंक एटलीस्ट 12 लाइक क्लासेस पूरी पार करी है. नाउ यू आर इन कॉलेज, एंड जब आप सीनियर सेकेंडरी में चले गए, यूजुअली द फुल बुक यूज्ड टू कम, राइट? 11 syllabus was omitted. According to CBSE it was divided ना, but last to last year देखे तो नहीं हुआ था ना, पूरी बुक आने वाली थी. अरे बच्चे पूरी बुक ही आती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके कुछ पार्ट है? कोई हम लोग वो थोड़ी कर रहे हैं. तूने 12th का एग्जाम नहीं दिया? नहीं तो फिर तो ये सवाल क्यों पूछ रहा है कि कहाँ से आएगा? मैम ये थोड़े बताएंगे. अरे मैम ये थोड़े बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. मैम बताओगे आप? ऐसे वही मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं होता. इट इज ऑलवेज, आप बड़े हो चुके हो, यू आर इन कॉलेज, आज आपने सवाल पूछ लिया है, आगे से डोंट आस्क एनीवन. यू विल बी ऑफ कोर्स गेटिंग द होल बुक, ओके? देयर आर 5 ब्लॉक्स. एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 ब्लॉक. द बिगेस्ट अच्छी बात भी यही है कि टॉपिक्स इतने ज्यादा है, और अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि जिसमें आप सब कुछ लिख सकते हो, तो तरह से अच्छी बात है. ऑफ कोर्स पढ़ना तो सर आपको सब कुछ पड़ेगा,
कोई शॉर्टकट नहीं है। थ्योरी टाइम मांगती है और ये आपको करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ओके, सो नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ मिडलमैन। हम बात कर रहे थे कि भैया मिडलमैन होता है, पर इसके टाइप्स होते हैं। ओके, सो पहला हम पढ़ेंगे फंक्शनल मिडलमैन। एज द नेम सजेस्ट, मर्केंटाइल एजेंट्स, as the name suggests, these people are the people who will be performing some kind of function for you. ये आपकी यूटिलिटी के लिए होते हैं, and these people will be acting on your behalf. ये सारे के सारे आपके बिहाफ पे काम करेंगे और आप इनको कमीशन दोगे या कुछ प्रॉफिट दोगे या पैसा दोगे, इस तरीके से आप इनके साथ डील करोगे। तो पहला इंसान होता है फैक्टर। दिस पर्सन विल टेक द गुड्स फ्रॉम यू, अपनी पोजेशन। अच्छा, ओके, सो गाइस, देयर इज अ थिंग कॉल्ड टाइटल ऑफ गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आप कोई चीज खरीदोगे, यू विल पे द प्राइस, पैसे पे करोगे और वो चीज आपके हो जाएगी। जैसे अगर आपने फोन के लिए पैसे दिए दुकानदार को, वो फोन आपको फोन दे देगा, बिल दे देगा और बोलेगा कि बिल पे नाम क्या लिखूं, आप बोलोगे जी ABC लिख दो, राइट? सो नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट। whoever pays the price, who has the bill in his name becomes the owner, right? एंड कभी कभी क्या होता है, हम अपने फ्रेंड को बोल देते हैं, अच्छा तू मेरी चल बाइक चाहिए तो ले जा, या मेरी बुक पढ़ने को चाहिए तो यू कैन टेक माई बुक टू रीड। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज you are still the owner of that product, but now the possession of that product is with the another person. So what happens, पैसे कोई दे रहा है और यूज कुछ टाइम के लिए कोई और कर रहा है। जब आप एक नॉवल खरीदते हो, आपने पैसे दिए, नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट नॉवल। आपने अपने फ्रेंड को वो नॉवल पढ़ने को दिया, आपकी फ्रेंड ने वो नॉवल पढ़ा और आपको वापस कर दिया, राइट? सो फॉर द मीन टाइम you have the ownership all the time, but थोड़े टाइम के लिए the possession is given to your friend. I hope this is clear. Possession का मतलब होता है किसके पास, किसकी कस्टडी में चीज पड़ी है अभी। ओके, सो फैक्टर के केस में क्या हो रहा है, भले ही प्रोड्यूसर इज द ओनर, the product will be transferred from owner to the factor, this person, this middleman. ये प्रोडक्ट इसके पोजीशन में रहेंगे एंड दिस पर्सन विल नाउ सेल दिस प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। कंफ्यूजिंग ना हो, दोबारा सुनो। फैक्टर एक ऐसा इंसान है जो कि प्रोड्यूसर से सामान ले लेगा, खरीदेगा नहीं, सिर्फ ले लेगा, ओके, और वो कहेगा कि सर देखो आपका सामान मेरी कस्टडी में है, मेरी पोजीशन में है, आई विल सेल दिस। अब जो मैं करूँ वो मेरे ऊपर है। जब वो चीज ये बेच देगा तो उसको प्रॉफिट कमीशन के रूप में दे दिया जाएगा। दैट इज अ फैक्टर। ब्रोकर का जैसे मैंने आपको बताया था कि ही इज सिंपली सम पर्सन हु विल ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर। आप इसको बोलोगे कि मुझे एक इसके लिए क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी गुड ले लो यार, कोई भी एग्जांपल ले लो, से अगर मुझे क्या बेचना, मुझे तो एग्जांपल याद नहीं आ रहा। टूथपेस्ट बेचना है, टूथपेस्ट बेचने के लिए मैं नया टूथपेस्ट बनाया, मैंने, आई एम न्यू इनटू द मार्केट, आई डोंट नो एनीवन, सो आई विल कांटेक्ट अ ब्रोकर एंड आई विल टेल दिस ब्रोकर कि सर मेरे को टूथपेस्ट बेचना है, आप मेरे लिए कोई होलसेलर लेके आओ। सो दिस पर्सन विल कांटेक्ट अ होलसेलर, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था। सो दिस ब्रोकर विल ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर, हेल्प इन द नेगोशिएशन एंड टेक कमीशन फ्रॉम बोथ। ठीक है, सो दैट इज द ब्रोकर, और इसको आप ब्रोकरेज पे करते हो। कमीशन नहीं बोलते, ब्रोकरेज बोलते हैं बेसिकली, ब्रोकरेज। फिर कमीशन एजेंट है, अगेन दिस पर्सन विल अगेन टेक द पोजीशन ऑफ द गुड्स। मैम जस्ट लाइक प्रॉपर्टी जो बेचते हैं, एनी काइंड ऑफ, हाँ, प्रॉपर्टी के भी ब्रोकर होते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्टीज को, देखो गाइस, ब्रोकर का एसेंशियल फीचर रहेगा कि ये दो पार्टीज को साथ में ला रहे हैं। ब्रोकर आपसे सामान नहीं खरीद रहा है, होलसेलर खरीद रहा है। ये सिर्फ प्रोड्यूसर और होलसेलर को साथ में लेके आएगा, फॉर एनी काइंड ऑफ टू पार्टीज को साथ में लेके आएगा, ब्रिंग्स टुगेदर दीस पीपल, मिला देता है इन दूसरे को। कमीशन एजेंट भी यही करेगा, आपसे पोजीशन ले लेगा, सामान आपके लिए सेल वेल करेगा आपके आगे, एंड ही विल ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स टू दैट बायर और आपसे कमीशन ले लेगा। डेल क्रेडिटर एजेंट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये लोग आपसे सामान खरीद लेते हैं,
ठीक है, कुछ हद तक आपसे सामान खरीद लेते हैं, और सामान भी बेसिकली ये आपसे खरीदते हैं बैड डेट्स। क्या होता है कि सामान यूजुअली ना आप डेट पे क्रेडिट पे बेचते हो। क्रेडिट पे बेचने का मतलब ये होता है कि आपने आज सामान बेच दिया, पर आपको पेमेंट मिलेगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। और कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट मिलती भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स, कि ये हमारा जो पैसा ये वेस्ट चला गया, बैड हो गया। So Dell creditor agents in promise of some extra commission takes that risk. ये कहते हैं कि सर आप चिंता ना करो, आप हमें सामान दो और आप समझो कि आपका बिक गया है, अब आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। So इसलिए इनको Dell creditor बोलते हैं agents, and these people are provided with Dell creditor commission because they assume the risk of bad debts. And then you have auctioneers. ये auction तो आपने movies में देखा होगा, एक रूम में इतने सारे लोग बैठे होंगे, एक पेंटिंग सी रखी होगी, कोई पुरानी सी चीज रखी होगी, एंड दिस पर्सन विल से कि चलो भाई अब अपनी बिडिंग करो। कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 4 लाख, फिर बोलेगा 5 लाख। नीलामी। कभी नहीं देखा ये? मैम देखा है यस मैम, नीलामी। वो बोली लगती है जो। हाँ देखा है। बोनी लगती है, जिसको हिंदी में बोनी बोलते हैं। तो जब उसको अच्छा प्राइस मिलेगा और कोई बिड्स नहीं आ रही होंगी, वो कहेगा 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, हथौड़े को मारेगा ठा करके, एंड दैट मींस द ऑक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। आईपीएल में होता है इसलिए आप हाँ आईपीएल में होता है ऐसा। मैम बिडिंग और ऑक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑक्शन के अंदर आप बिडिंग करते हो। ऑक्शन के अंदर ही बिडिंग, ठीक है मैम। जैसे मेरी कंपनी है, अभी उनने किसी चीज के लिए बिड करा मान लो, तो आप बिड ऐसे थोड़ी कर दोगे सर। आप पहले एक तो एडवर्टाइजमेंट करोगे कि दिस ऑक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दिस इज द कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट विल बी सोल्ड। ये ऑक्शंस भी ना कभी कभी पब्लिक के लिए होता है और कभी कभी इनविटेशन पे होता है। गो टू द ऑक्शन के लिए आपको पहले तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि ऑक्शन होने वाला है। समटाइम्स इट इज ओपन फॉर पब्लिक एंड समटाइम्स इट इज नॉट, समटाइम्स इट इज अ प्राइवेट थिंग, कि कुछ रईस लोग ही आएंगे और वो ही खरीदेंगे बाय इनविटेशन। एंड एक इनका रिजर्व प्राइस रहेगा कि जैसे बोनी स्टार्ट होनी है, दिस बिड विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख ओनली। 50,000 से स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ। बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। ऑक्शनर को कमीशन मिल जाती है अपनी। ओके, देन यू हैव मर्चेंट मिडलमैन। अभी हम लोग फंक्शनल मिडलमैन की बात कर रहे थे, अब हम मर्चेंट की बात करेंगे। अभी तक यूजुअली क्या हो रहा था, दीज पीपल वर हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, they were having possession of the goods. Now the merchant will buy the goods and become the owner. He will acquire the title of the goods. This merchant middleman will now buy the products from the producer and sell it at a profit, of course. सारे के सारे बिजनेस के लिए बैठे हैं, कोई भी यहाँ पर लॉस के लिए नहीं बैठा है, कोई भी यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा है। They are here for profit. So functional middlemen are providing functions to you, that they were facilitating the trade, taking the goods in possession and selling it further, taking commission in that respect. But merchant middlemen will buy it from you and they will sell it again. They will become owner for some time of those products and sell it and have not commission but profit. तो सेम इनके गाइस फीचर्स रहेंगे। कन्वीनियंस है कस्टमर्स को, डिमांड जब हो, सप्लाई एकदम स्टॉक रेडी है, आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो और अगर आप इनसे बल्क में खरीदोगे या बल्क में बेचोगे, आपको क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, सर्विसेज आप अवेलेबल करा सकते हो, चैनल और कम्युनिकेशन है। क्या होता है गाइस, कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अब मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने रिटेलर को बोला सर इसके अंदर ना मुझे थोड़ी वैरायटी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जब एप्पल के नए नए प्रोडक्ट्स आए थे, फोन्स आए थे, तो द कलर यूज्ड टू बी सिल्वर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ब्लैक कलर के फोन निकालने शुरू करे और बहुत टाइम तक दे हैड ओनली सिल्वर एंड ब्लैक फोन्स। बट ओवर टाइम व्हाट हैपेंड इज कि लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई कलर्स निकालो, वैरायटी दो।
कुछ फाइबर बॉडी निकाल दो, कुछ हल्की बॉडी निकाल दो, तो ये EX सीरीज आनी शुरू हुई थी जो सस्ते थे आईफोन्स, बिकॉज कस्टमर वांटेड वैरायटी, तो कलर और आने शुरू हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिटेलर होलसेलर भी प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं, ताकि प्रोड्यूसर को पता चले कि भैया कस्टमर को चाहिए क्या। So through these channel of distribution you communicate as well, and they help you advertise as well. Okay, so that was your basics of channel of distribution कि why do we use it, how do we use it, and कैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, और कौन कौन होते हैं ये। अरे ये हो गया। ओके, सो होलसेलर रिटेलर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। मैं आपको बेसिक्स बता ही दी है। यूजुअली जो हम अभी तक ऊपर कवर करके आए हैं सब कुछ यहीं पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। होलसेलर कौन होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनका क्या काम होता है। टाइप ऑफ होलसेलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मर्चेंडाइज के बेस पे ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से हो गया लोकल होलसेलर, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, रीजनल। जनरल में आपका हो जाएगा कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सॉरी अनरेटेड प्रोडक्ट्स। जनरल में अनरेटेड प्रोडक्ट्स होंगे कि आप कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे हो, आप प्रोड्यूसर क्या कहते हैं ये एक सेकेंड, अनरिलेटेड। ठीक है, पहली चीज रहेगी कि द प्रोडक्ट्स विल बी अनरिलेटेड, जनरल, एंड दे डोंट हैव एनी कोरिलेशन विद देम। आप जैसे एग्जांपल चाहिए इलेक्ट्रिक गुड्स भी बेच रहे हो, कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे हो, सब कुछ है आपके पास, काफी चीजें पड़ी हैं जिस चीज को बेच रहे हो, राइट। एंड देन यू हैव लाइन। लाइन मतलब हो गया कि एक तरीके के प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए यहाँ पर। जैसे अगर आप साबुन बेच रहे हो, राइट, आप डिटर्जेंट बेच रहे हो, और साबुन भी बहुत तरीके के बेच रहे हो, इस तरीके से। सिंगल लाइन में अगर आप साबुन बेच रहे हो तो साबुन के बहुत वैरायटी रहेंगी आपके पास, एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स रहेंगे। सर्विस होलसेलर्स, दिस विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज एंड पैकेजिंग दे देंगे आपको, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। सी गाइस, होलसेलर्स ना सर्विस के भी होते हैं। जैसे आप चीजें बेचते हो, आप सर्विस भी तो बेचते हो, एंड दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फर्दर टू द कस्टमर्स। लिमिटेड फंक्शन तो इनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। जैसे अगर कोई एड की एजेंसी है तो एड के एडवर्टाइजमेंट होलसेल में बनाते हैं, लाइक दैट। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं गाइस, तो यू कैन रीड इट। ऐसे ही फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। असेंबल करना, स्टोर करना, प्रेड, पैक, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को। ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स भी देते हैं, रिस्क भी बेयर करते हैं, क्योंकि अगर कल को इन्होंने इतने सारे स्टॉक लेके खरीद के रखा हुआ है, कल को डिमांड चेंज हो गई तो ये सारा प्रोडक्ट इनका वेस्ट हो जाएगा। तो रिस्क इज अ काइंड ऑफ अ पॉइंट जो कि हर एक जगह में एप्लीकेबल है। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स wherever you want, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स प्राइस फिक्सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड ऑल दीज आर फिक्स्ड, because these people have they also have to earn profits. तो बीच में ये लोग अपना प्रॉफिट निकाल के अल्टीमेट प्राइस की फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स एंड ये सब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि कम्युनिकेशन करते हैं, टाइमली चीजें सप्लाई हो जाती हैं, डिस्काउंट मिल जाते हैं। these are very repetitive points, you can go through this. And yeah, so the next topic will be the elimination of wholesalers. वो कहते हैं कि क्या eliminate करना चाहिए। wholesalers की यूटिलिटी तो हमने देख ली है कि टाइमली प्रोडक्ट पहुंच जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, ट्रेडिंग, पैकेजिंग एंड ऑल में सब हेल्प कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देते हैं। बट डू वी नीड द होलसेलर्स? तो इसका आंसर सिंपली है कि इफ यू थिंक you are someone who can do it on your own, don't involve the middlemen, don't involve the wholesalers, don't involve the retailers, ठीक है। if you think कि क्या कहते हैं आप सारा का सारा जो benefit है you want to give it to the customer only, don't involve the wholesaler, right? So these are the basically your points. इसमें nothing to say explain. retailing guys, जैसे अगर wholesaler है वो अपने personal use के लिए चीजें नहीं खरीदता, wholesaler sells it to the retailer, right? And the retailers sell the goods for personal use. The customers take the product from retailers, not the wholesalers.
ठीक है. General flow of goods will be from the producer to the wholesaler, to the wholesaler to the retailer, retailer to the customer. So the retailer is the link between the wholesaler and the customer, and he will be the person who will be using the products for personal use, ultimate usage of the products. So retailer is someone who will sell the goods to the customer. Again, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि he will have a lot of variety, but quantity will be less. He will take feedback back to the क्या बोलते हैं, wholesaler and the producer, and this person will have a personal touch. हम अपने local grocery store में जाएंगे, ये same points है guys, I'm not doing the points again. हम लोग अपने local grocery store में जब जाते हैं तो हमसे अंकल आंटी पूछ लेते हैं और बेटा कैसे हो. So there is always a personal touch involved in these क्या बोलते हैं wholesalers and retailers. Sorry, retailers. Retailers will be personally in touch with the customer because you will be selling it to them. देखो कितना बचा है. हम जिससे हम उधार भी ले लेते हैं वो ही पर्सनल हुए. उधार क्रेडिट हो गया ना, तो क्रेडिट पे सामान आप खरीदते हो, बिल्कुल खरीदते हो, बट देन आपको क्रेडिट हर कोई तो नहीं देगा. नहीं यार कोई देगा. नो वन विल बी लाइक, अगर आप पर्सनल रिटेलर होगा वो दे देगा. कौन सा? जो पर्सनल में जानकार होते हो, जो आपको जानते होंगे ना वही तो देंगे. मैं तभी तो बोल रही हूँ कि देयर इज अ पर्सनल टच इन रिटेलिंग. द रिटेलर जनरली नोज यू. आपका ग्रोसरी स्टोर वाला, आपका नाई, आपका सैलून वाला, these people will know you. तो यहाँ पर आप क्रेडिट चला सकते हो, but then again not everyone accept the credit. ठीक है. And the last topic is type of retailers. दो तरीके के होते हैं, एक आइटिनरेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरे फिक्स्ड होते हैं, राइट. सो आइटिनरेंट में क्या रहेंगे, हॉकर, पेडलर्स, ट्रेडर्स. ये लोग चल चल के एक दूसरे मार्केट जैसे लगती है, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेंसडे मार्केट, संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, ये सारी मार्केट्स एक जगह पे लगती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है. तो दीस पीपल कीप ऑन मूविंग. तो जो मूव करते हैं वो आइटिनरेंट रहेंगे, और फिक्स्ड जो शॉप्स एक फिक्स्ड है जहां पर आपको जाना पड़ेगा. Itinerant retailers will come to you. You have to go to the fixed shop retailers. ऐसे रहता है. तो ये काफी तरह के टाइप्स है, जहाँ जहाँ आपको स्मॉल स्केल रहेगा, कुछ छोटे छोटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे. यू हैव डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, सुपरमार्केट्स, फ्रेंचाइज मार्केट्स, हायर परचेज सिस्टम, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स. जो छोटी छोटी वेंडिंग मशीन्स नहीं लगी होती आपकी, जो आप पैसे डालते हो, नोट डालते हो, और टक टक करके कोड दबाओगे तो सामान आ जाता है. वो भी एक तरह का रिटेलर है आपके लिए. अगेन क्योंकि यू आर द कस्टमर हु इज गोइंग टू यूज दैट प्रोडक्ट. एनीथिंग दैट लिंक्स you to the ultimate usage of the product is the retailer. Okay, so these are the types. You can go through this, and I think this is the last topic. With this we can finish it off. Yeah. तो इस यूनिट का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज योर फॉरेन ट्रेड. वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड फ्रॉम देयर विल गो अबाउट डूइंग ब्लॉक 4. ठीक है. तो ब्लॉक 1 इज कंप्लीट. ब्लॉक 3 का एक टॉपिक बचा है, एंड देन विल स्टार्ट विद ब्लॉक 4. इस ब्लॉक 4 के बाद योर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विल बी कंप्लीटेड, एंड देन विल डू फाइनेंस एंड गवर्नमेंट इन बिजनेस लास्ट क्लास का. ठीक है. Any question if you have to please ask, otherwise yeah we can close the this and please जैसे कल आपने मेरी हेल्प की थी, please help me out today as well, starting from the attendance of Devyan Singh. एक second, let me stop the presentation first. Yeah. So starting from the attendance starting from the attendance 12:35, that is your Devyan Singh. Please someone copy and पृथ्वी भाई आप कर दो, आपने भी कल ही करी थी आपने. हाँ करता हूँ. if anyone can do. Yeah, thank you so much. मैम वो ना PDF चाहिए था मैम, जो आज का और कल का.